workshop, Padma Shri Dr. Sharat Ji Kale, sir, President of today's program, Dr. Shri Anil Kumar Ji Sada, sir, Srimati Anita Sada, ma'am, Narsim Ji Sada, sir, Executive Member of Adarsh Vidya Mandir, Shri Naresh Ji Chapekar, sir, Secretary of Vigyan Bharati Vidya Mandal, Treasurer of Vibhag, Shri Padhyum Chache, sir, Coordinator Shri Shatir Ji Ghare, sir, Shri Ashish Jain, other respected members of Adarsh Vidya Mandir Management, associated members of Vigyan Bharati, CEO Shri Mayur Shah, sir, all the unit heads, my colleagues and dear students. A very energetic good morning to everyone present here. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल से विज्ञान भारती विदर्भ प्रदेश मंडल एसोसिएशन से इन एसोसिएशन में श्रीमती सीबी आदर्श विद्या मंदिर में विज्ञान संस्कार शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसका कल उद्घाटन दिवस था। उसी क्रम में आज हमारे बीच पद्मश्री अवॉर्डी एमिनेंट साइंटिस्ट डॉक्टर शरद जी काले सर उपस्थित हैं। मैं चाहती हूँ एक बार सभी लोग जोरदार तालियों से सर का स्वागत करें। सर की टैगलाइन है, I don't believe in waste. It actually is a resource that needs to be reused. और इसी को फॉलो करते हुए सर लंबे समय से निसर्ग ऋण प्रोजेक्ट चला रहे हैं, which is the soul of all his significant work. सिंपल तौर पे बताया जाए तो कचरा शब्द सर के डिक्शनरी में है ही नहीं। Calling something waste is a crime. कभी ये हमेशा कहते हैं कि waste is a resource in the wrong place. जब हम निसर्ग ऋण की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि what is taken away from the nature should be returned to it. But here conditions are applied. It should be returned in a useful manner. सर ने माइक्रोबायोलॉजी में एमएससी और पीएचडी पुणे यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की। बाद में he joined Bhabha Atomic Research Center and served as a scientist in various capacities. He is retired as an associate director of Bioscience Group, head of Nuclear Agriculture and Biotech Division, and head of Food Technology Division. सर के अचीवमेंट की फहरिस्त सचमुच में इतनी लंबी है कि it's very difficult for me to summarize this broad spectrum of work in few words. मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, न आदि है न अंत है, न आदि है न अंत है, आपके गुणगान बेअंत है। Sir has over 65 publications to his name and has developed several technologies which are in the public domain. His major contributions are in the field of pesticide microbial interactions and environmental impact of pesticides, green synthesis of metal nanoparticles using microbial roots. सर की पूरी स्कूलिंग अहमदनगर में हुई और साइंटिस्ट बनने की इन्हें जो प्रेरणा मिली वो क्लास 7th स्टैंडर्ड से ही थी। सर आप खुद बहुत बड़े रिसर्चर हैं, पर आपके बारे में यहाँ बोलने के लिए मैंने खुद बहुत रिसर्च किया, आपके वीडियो देखे, आपके वीडियो सुने, पर्टिकुलरली आपका मुंबई यूनिवर्सिटी का व्याख्यान। ह्यूमरस वे में सभी बातें इजीली कह जाना, इट इज द स्पेशलिटी ऑफ शरद सर। जब सर 7th क्लास में थे तभी होमी भाभा जी, जो फादर ऑफ द इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम है, उनकी डेथ हुई थी। होमी भाभा जी के बारे में सर के प्रिंसिपल नगरकर सर ने उस समय उन्हें जो कुछ भी बताया, उससे सर इतने ज्यादा इंस्पायर हुए कि तभी उन्होंने निर्णय ले लिया कि मैं साइंटिस्ट बनूंगा। Means that was the turning point of his life. Inspired being good in mathematics and even getting admission in Indira Gandhi Medical College, he pursued BSc and MSc and joined Bhabha Atomic Research Center later. सर कई सारे बड़े एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, कई बुक्स भी इनकी पब्लिश हुई हैं। His contribution was highly appreciated by Government of India, and so he was honored and awarded with Padma Shri in the discipline of Science and Engineering in the year 2013. एक बार फिर से सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। ऐसे मल्टीटास्किंग, मल्टी टैलेंटेड, डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटी जो अपने आप में ही एक वॉकिंग इंस्टीट्यूशन है, उनके स्वागत हेतु मैं श्री अनिल कुमार जी साडा सर, जो संस्था के प्रेसिडेंट हैं, उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सर का स्वागत करें। Thanks again, sir, for your glorious
प्रेसिडेंट डॉक्टर श्री अनिल कुमार जी सागर सर उपस्थित हैं। सर के ही अथक प्रयास से हमें अनेक प्रसिद्ध विभूतियों से रूबरू होने का मौका मिलता है। पिछली गांधी जयंती में परमवीर चक्र सम्मानित सूबेदार मेजर श्री योगेंद्र सिंह यादव इसी जगह आए थे और आज पद्मश्री अवॉर्डी श्री शरद काले जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। थैंक यू, थैंक्स वंस अगेन सर। मैं सीईओ श्री मयूर शाह से निवेदन करती हूँ कि वे सर का स्वागत करें। थैंक यू सर। हमारे बीच श्रीमती अनीता साड़ा मैम उपस्थित हैं। मैम का स्वागत करने के लिए मैं नागपाल मैडम को मंच पे आमंत्रित करती हूँ। एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ एरिया श्री नरसिंह जी साड़ा सर का स्वागत करने के लिए मैं शाला के प्रिंसिपल श्री तिवारी सर को आमंत्रित करती हूँ। विज्ञान भारती विदर्भ के सेक्रेटरी श्री नरेश चापेकर जी का स्वागत करने हेतु मैं डहाके सर को आमंत्रित करती हूँ। यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों का मैं शब्द सुनने द्वारा स्वागत करती हूँ। अब मैं प्रास्ताविक देने के लिए आदर्श विद्या मंदिर के प्रेसिडेंट श्री अनिल कुमार जी सागर सर को मंच में बुलाना चाहूँगी। आज आदर्श विद्या मंदिर संस्था के लिए विशेष गौरव का दिन है। पद्मश्री काले सर, शरद काले सर हमारे पधारे हुए और उनके और बच्चों के इंटरेक्शन में मैं बहुत ज्यादा देर बाधा बनते खड़ा रहना नहीं चाहूँगा। तो बेधड़क आप चाहे अपने प्रश्न उनको पूछ सकते हैं और आपके मन में जो भी शंका है, जो भी समाधान करना चाहते हैं विज्ञान के बारे में, आप सबसे फ्री होकर के चर्चा कर सकते हैं। मैं सर से परमिशन ले रहा हूँ कि कोई भी बच्चा संबंधित कोई भी प्रश्न पूछिए। किसी शिक्षक को जिम्मेदारी भी दी है कि आपके प्रश्न भी नोट करेंगे। प्रश्नों पर सर बाद में आपको सवालों का जवाब भी देने वाले हैं। मैं और एक बार आपसे गुजारिश करना चाहूंगा काले सर कि एक सेशन सिर्फ विज्ञान और उससे संबंधित शिक्षकों के लिए क्या ले। जैसा कि आपने कहा कि मैंने सर से पूछा था कि आपको कितना समय चाहिए, तो सर ने कहा कि मुझे 24 घंटे भी कम पड़ते हैं। सर को शायद कल्पना नहीं है कि आजकल बच्चों को तो छोड़िए, शिक्षकों को इतनी देर बैठने की आदत नहीं है। और हो सकता है 3-4 दिन में सेशन में, क्योंकि मेरा मानना है कि बच्चों को ट्रेनिंग देने के बजाय ट्रेन द ट्रेनर्स, अगर हम शिक्षकों में भी थोड़ा बहुत परिवर्तन ला सके तो अपना जो पर्पस है विज्ञान संस्थान शिविर का पर्पस भी सॉल्व होगा। ऐसे मुझे लगता है। इस शिविर के दूसरे दिन में आप सभी का और एक बार स्वागत और आप सब पधारे और उत्स्फूर्त होकर के इसमें भाग ले रहे हैं। मैं आप सभी का धन्यवाद अदा करता हूँ और आगे कार्यक्रम बनाने की कोशिश करता हूँ। थैंक्स अ लॉट सर फॉर योर वेल्युएबल वर्ड्स। अब समय आ गया है कि जब हमें डॉक्टर शरद काले सर निसर्ग और बहुत सारी चीजों के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। सर प्लीज एड्रेस करिए। विदर्भ थोड़ा सा हमारी कार्यकक्षा के बाहर रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम कार्यक्रम हम विदर्भ में कर सके, तो चाफेकर जी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत समय ज़्यादा नहीं लूँगा आपका, लेकिन एक कोशिश ये कीजिए कि जितना हो सके कंसंट्रेट करके मैं जो कुछ बातें बता रहा हूँ सुन लीजिए, और अगर मन में कोई सवाल आता है तो हाथ ऊपर करके सवाल जरूर पूछिए। जो सबसे बढ़िया सवाल निकलेगा आज के सेशन में, उनमें से 5 बच्चों को मैं कुतूहल रत्न करके एक प्रशस्ति पत्रक दूंगा आपको, और वो प्रशस्ति पत्रक शायद आज नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि आज शाम तक वो प्रशस्ति पत्र पहुंच जाएंगे, लेकिन वो 5 बच्चे आके फिर आपके स्कूल के ऑफिस से। ये कहानी मैं शुरू करता हूँ। हमारे दत्तात्रेय अनंत देशपांडे सर थे, उन्होंने एक सवाल दिया था हमें। वो सवाल क्या था? एक पानी की टंकी है, एक पानी की टंकी है, उस टंकी का वॉल्यूम 10,000 लीटर है। कितना है?
आपको गणित ये सॉल्व करना है सब। हाँ, फिर ध्यान से ध्यान से सुनो, बहुत कठिन नहीं है, 5वीं का दम है, आप लोग सारे 7वीं से ऊपर है तो आराम से कर सकते हो। तो 10,000 लीटर ये वॉल्यूम है इसका, और इसमें पानी भरने का जो नल है उसकी गति है 120 लीटर प्रति मिनट। प्रति मिनट 120 लीटर प्रति मिनट उसमें पानी भर रहा है, लेकिन उसमें छेद हुआ और वो छेद से कुछ पानी निकल जा रहा है। उस पानी का जो स्पीड है वो 20 लीटर प्रति मिनट है। तो टंकी भरने को कितना समय लगेगा? 120 लीटर प्रति मिनट पानी भर रहा है, 20 लीटर प्रति मिनट पानी गल रहा है, 10,000 लीटर उसकी टंकी है, तो पानी भरने को कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? एक जीरो में गड़बड़ होगी। 100 मिनट बराबर। क्या नाम है आपका बेटा? गोविंद साइकोरिया। ये गोविंद जैसे बहुत होशियार लड़के मेरे क्लास में थे। सब लोगों ने अपना अपना श्रम कर लिया और स्लेट पे, उस जमाने में 5वीं में पार्टी हुआ करती थी, भयानक थे त्यावेळेला 5वीं मध्ये, तो पार्टीवरती सगळ्यांनी गणित सोडवली, दिलं त्याच्यावरती 100 मिनिटं लागतील। मैं अपना काम छोड़ के सर के चेहरे के पास देखा। अभी कोई आपके पास ऐसा घूर के देखे तो तकलीफ होती है, बाद में डाउट होता है, बाद में गुस्सा भी आता है, क्या आदमी घूरते जा रहा है। तो सर ने कहा, सर तो गुस्सा है। सर ने कहा, बेटे जवाब तो मेरे चेहरे पे लिखा हुआ है, जवाब क्यों नहीं होगी? सर जवाब तो मैं लिख सकता हूँ, लेकिन एक सवाल मन में आया है। सर ने पूछो। सर ने कहा पूछो। तो मैंने कहा, सर अगर ये टंकी गल रही है तो इसे भरे क्यों? वो गलती बंद करे फिर भरेंगे, फिर हमको सब्ट्रैक्शन भी नहीं करनी पड़ेगी और एक ही स्टेप में आंसर भी मिलेगा, है ना? तो सर ने कान पकड़ा। उस जमाने में कान पकड़ना अलाउड था, अभी कोई पकड़ेगा तो हाई कोर्ट में जाता है। उस जमाने में सर ने हमें पनिशमेंट भी देते थे, मारते भी थे। सर ने कान पकड़ के खड़ा किया। मुझे लगा सर शाबाशी देंगे, वो गब्बर सिंह होता है ना, तुम्हें क्या लगा सरदार शाबाशी देगा, खुश होगा? वैसे मुझे भी लगा सर शाबाशी देंगे, लेकिन सर ने कुछ शाबाशी वगैरह दी। सर ने कहा, क्या खुद को ज्यादा स्मार्ट समझते हो? किताब की गलती निकाल रहे हो, ये सब ऐसा ही करना पड़ेगा क्योंकि इसको 5 मार्क्स और पूरा भारत देश है ना, मार्क्सवादी देश। वोट देंगे, बीजेपी को देंगे, कांग्रेस को देंगे, राष्ट्रवादी को देंगे, लेकिन ज्ञानवादी कोई नहीं है, यहाँ सब मार्क्सवादी लोग हैं। और यहाँ ऐसे सवाल पूछना परमिटेड नहीं है। लेकिन दूसरी चीज सर ने कही थी, एक 5वीं के लड़के को शिक्षक ने क्या बताना चाहिए, इसका वो ऐसा भी उदाहरण है। सर ने कहा, बेटे सवाल तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर किताब की गलती तुम्हें निकालनी हो तो मैं तुम्हें एक काम देता हूँ। क्या काम देता हूँ? जब तुम बड़े होगे, भारत देश में जाएगा, तुम्हें अलग अलग शहरों में जाके देखेगा तो तुम्हें पता चलेगा पूरा भारत देश गलती हुई टंकी में पानी भर रहा है। अगर उसमें से एक गलती बंद करने की कोशिश करो और फिर मैं आसमान में रहूंगा, देशपांडे सर, मेरी तरफ देख के बोलो, देशपांडे सर मैं कोशिश कर रहा हूँ, तभी मैं आपको और किताब की गलती निकालने की परमिशन दे दूंगा। आज मैं दत्तात्रेय आनंद देशपांडे सर की तरफ देख के और एक बार बोल रहा हूँ, सर आज आदर्श विद्यालय में और एक कोशिश कर रहा हूँ गलती बंद करने की। हमारे देश में हम सब सीखते हैं, कॉमन सेंस नहीं सीखते हैं। कभी कभी बहुत दुख होता है।
उसका फोटो लेके रखो और एड्रेस देके रखो, बाद में मैं उसे कांटेक्ट करूंगा। कितने बच्चे ऐसे हैं आपके, कितने बच्चे आपके हमारे भविष्य में किसान बनेंगे? कितने बच्चे ऐसे हैं हमारे आज के समूह में जो वैज्ञानिक बनना चाहते हैं? कुछ हाथ ऊपर आए जरूर। कौन सा वैज्ञानिक? अरे बहुत बढ़िया, ऐसा सवाल तुमने जवाब तो मिला नहीं सर। मैं बाद में अभी तो तुम फंस गए, अभी तुमको बहुत सवाल, ठीक है। तो जो सृजनशील जैसे निर्माणक्षम जो ऐसे कार्य होते हैं वो शिक्षकों के माध्यम से होते हैं, वो किसानों के माध्यम से होते हैं और वो वैज्ञानिकों के माध्यम से होते हैं। बाकी सारे सेक्टर्स इंपॉर्टेंट है, सेवा सेक्टर से। क्यों हमारे बच्चे ये 3 प्रोफेशन की तरफ आकर्षित नहीं हो रहे हैं? ये पहला सवाल है। इसका जवाब भी मेरे पास है, मैं देने वाला हूँ। से किसी कोई किसान नहीं बनना चाहता, सब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जाना चाहते, केमिस्ट्री में जाना चाहते, फिजिक्स में जाना चाहते, ठीक है। तो दोपहर को भूख लगी, अभी 12 साढ़े 12 बजे सबको एक एक पेन ड्राइव खिला दूंगा, क्योंकि आप में से कोई किसान नहीं बनना चाहता। और शाम को एक कॉम्पैक्ट डिश ड्राइव खिलाऊंगा। अगर बहुत ही भूख लगे तो संगणक खा लो या माइक खा लो, क्योंकि खाने के लिए कोई बचेगा नहीं। और अगर वैज्ञानिक नहीं रहेंगे हमारे देश में तो हमारे देश के प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा? बाहर वाले तो बैठे हैं, वो आके बोल रहे हैं कि हम आपके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। उनको तो चाहिए एक 140 करोड़ मूर्खों की जो बाजार उपलब्ध है उनके लिए ये मूर्ख रहे, यही तो चाहते हैं। हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बाहर से लोग आते हैं। एक ईस्ट इंडिया कंपनी आके गई, 150 साल राज करके गई, आज 150 कंपनी से ज्यादा कंपनी यहाँ भारत में है। कितनी साल हमारा राज करेंगे? हमने वो मैच देख ली है नहीं। अभी मुकेश अंबानी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं, जियो तो कम से कम दिखा रहा है, लेकिन स्टार के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, ESPN के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, क्योंकि ये सारी परदेशी कंपनी हमारे देश में आके अपना ये ठेका ले रही है साहब। क्यों हमें ठेका दे? क्योंकि हम पागल हैं, क्योंकि आप मूर्ख हैं। we are not able to understand what is the need of the hour। जब बाहर घूमता हूँ ना, कल हैदराबाद से नागपुर आ रहा था आपके दुरंतो एक्सप्रेस से, और जब आप नागपुर के अंदर आ रही थी और बहुत ऐसा आपण मराठी भीषण न झालं, हेच वाटलं मला, वाईट वाटलं कि क्या परिस्थिति हमने निर्माण की है। सब जगह कूड़ा फैला हुआ है। एक सवाल मैं आपको मेरी कविता के माध्यम से करना चाहता हूँ। आजकल कुछ काम नहीं है ना, तो कविता लिखता हूँ। एक कविता के माध्यम से एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या बदल सकेंगे हम खुद को? क्या बदल सकेंगे हम खुद को? क्या करेंगे कूड़ा मुक्त अपने घर को? घर का कूड़ा पड़ोस में फेंक के घर तो स्वच्छ होगा मेरे मित्र, लेकिन क्या भारत स्वच्छ होगा? उसी कूड़े से आएगी ना कल के अनाज की बोरी। यही बदलाव ना पदार्थ के अविनाशित्व की कहानी। डंपिंग यार्ड बढ़ाते जा रहे हैं, धरती माँ को कब से तड़पा रहे हैं। घर का कूड़ा म्यूनसिपालिटी की गाड़ी में डाल के घर तो स्वच्छ होगा मेरे मित्र, लेकिन क्या भारत स्वच्छ होगा? कूड़ा बाहर फेंकने से जहाँ दिन की शुरुआत होती है वहाँ भारत बदलने की बात हो रही है। मेरा भारत माँ, हमारे दिन की शुरुआत कैसे होती है? माँ बोलती है जा बेटी ये कचरे का डब्बा बाहर रख, म्यूनसिपालिटी को गाड़ी आके उठा लेगी। इससे हमारी दिन की शुरुआत होती है। हम कहते हैं कि हम पर्यावरण के बारे में अवेयर रहे। हम कहते हैं, हम इतनी आसानी से कहते हैं हम सब जानते हैं, लेकिन करते हो क्या? ये सवाल। कितना खाना फेंक देते हो अपने डिश में? खाना फेंकना ये 3 लोगों का अपमान होता है।
खाना फेंकना 3 लोगों का अपमान होता है। आपके मम्मी का अपमान होता है जिसने ये सारा खाना बनाया, किसान का अपमान होता है जिसने ये सारा खाना पैदा किया, और धरती माता का अपमान होता है जिसने ये सारी मेहनत आपकी दी। कौन सा अधिकार आपने लिया है हाथ में जो आप इन 3 लोगों का अपमान कर सके? आज हम साथ साथ खड़े होके एक शपथ लेने वाले हैं। आज से कहिए, आज से हम अपनी डिश में कोई भी खाना छोड़ेंगे नहीं। जितना चाहिए उतना ही खाना अपने डिश में लेके खत्म करेंगे। माझी आई सांगायची मला लहानपणी, बेटा खाऊन मागावं, टाकून मागू नये. यू शुड ऑलवेज ईट वॉट एव्हर इज गिवन टू यू, वेदर यू लाईक इट और नॉट. कारल्याची भाजी आवडत नाही, आई म्हणते कारल्याची भाजी खा, आईला म्हणायचं थोडीशी म्हणते खाई. यू मस्ट डेवलप दैट हैबिट. किसी को डिसरिस्पेक्ट करना आपको अधिकार नहीं. अगर आपने ये खाना फेंकना बंद कर दिया तो देखो भारत का जो 100% खाना है वो 20% कम हो जाएगा, क्योंकि भारत में जितना खाना वेस्ट होता है 20% खाना वेस्ट होता है. मुंबई की लोक संख्या 2 करोड़ के आसपास है और मुंबई में 3,500 टन पका हुआ खाना डंपिंग यार्ड पे आता है. नरेची केला ही न किती नर, आम्ही आम्हाला किती डिग्रेड केलंय. हाउ मच वी हैव डिग्रेडेड आवरसेल्फ, हमें जानते भी नहीं हम गलती कर रहे हैं. बड़े बड़े लोग बुफे में वो खड़े रह के डिश में लेके आदत फेंक देते. सारा सर आप लोगों से दोनों हाथ जोड़ के विनती है, आज से ये प्लास्टिक बंद करो. कोई जरूरत नहीं, एक स्टील का ग्लास रखिए और अगर किसी को इतनी पड़ी है कि अच्छा पानी चाहिए तो खुद लेके आओ. हम यहाँ यही पानी पीते हैं सब लोग. एक पानी का मटका रख दीजिए, बहुत आसानी से पानी पी सकते हैं. एक कितनी बॉटल्स कम हो जाएंगे. आपने अच्छा फूल दिया, लेकिन इस फूल को ये उसका कफन मत पहनाइए. ये कफन पहनाने से कोई जरूरत नहीं है फूल की. खाली फूल दे दीजिए. मैं आपको कुछ मतलब इंडिविजुअली नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारी जिम्मेदारी है. ये अगर हम ये बच्चों को पढ़ाएंगे, अगर सामने देखेंगे ऐसा फूल दिया जा रहा है तो उनके मन में नहीं आता है कि इसमें कुछ करना चाहिए. ये सिर्फ बोलने की बातें होती है, स्टेज पे बोले जाते हैं. कितनी बोतल्स हम फेंक देते हैं. भारत में, महाराष्ट्र में कम से कम 1 करोड़ मिल्क बैग्स रोज निकलती है और हम दूध का मिल्क बैग घर में लाके काट देते हैं. ऐसा यहाँ वो ऐसा जो कपड़ा तो छोटा कापलेला टुकड़ा खाली पडतो. 1 कोटी तुकडे रोज पर्यावरणात मिसळत आहेत. 1 कोटी तुकडे. पिशवी ठीक आहे, त्याचं कोणीतरी वॉश करून ते वापरत असेल, माहिती नाही, पण हे 1 कोटी तुकडे रोज 365 कोटी तुकडे पर्यावरणाचे दरवर्षी गुणिले 40 वर्ष हा प्रकार चालू आहे. मला आठवते तेव्हापासून 1980 पासून प्लॅस्टिकच्या बाटलीत पाकिटात दूध यायला सुरुवात झाली. किती तुकडे त्या पर्यावरणामध्ये मिसळले. हाऊ यू आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट दॅट, हाऊ यू आर गोइंग टू रिकवर दॅट. आणि त्याचे जे परिणाम तुमच्या समोर दिसतात मुलांवरती, यंगर जनरेशनवरती, दोज वी आर रिस्पॉन्सिबल. Somewhere we have to take this into account and tell children that make sure that your mother washes the पाकिट उघडताना न तुकडा कापता पाकिट उघडता येतं. त्याच्यामध्ये फक्त भोग पाडायचं, सरळ उघडायची आणि मग ते दूध काढून घ्यायचं आणि ती फक्त धुवून ठेवायची. दॅट इज व्हॉट इज एक्सपेक्टेड. अरे आपण त्या सगळ्या कचऱ्याच्या बादलीला 1 दिवस घरात ठेवू शकत नहीं. हम कचरे का जो बकेट है 1 दिन घर में नहीं रख सकते, गंदा स्मेल आता है. हाउ कैन यू एक्सपेक्ट पीपल टू लिव दैट गंदगी एंड टेक इट टू द डंपिंग यार्ड? व्हाई डू यू डिग्रेड दोज पीपल? अरे त्यांचं काही जीवन नाहीये का? लिफ्टमध्ये त्यांनी जेव्हा ते लिफ्टमध्ये घेऊन जातात मोठ्या बिल्डिंग मधनं, लिफ्टचे सगळे लोक नाक दाबून धरतात. तो वास त्या लोकांच्या कचऱ्याला येत नसतो, त्या लोकांचा वास असतो.
आपल्याला तो वास येत असतो. मेक शुअर ऑफ दॅट. आपली जबाबदारी. तुम्ही सगळे यंग पोर आहात. तुम्ही हे समजून घेतलं पाहिजे. आमच्या घरामध्ये गेली कित्येक वर्ष कचऱ्याचा एक ग्रॅम सुद्धा म्युन्सिपाल्टीच्या डब्यात जात नाही. आय कॅन से माय हाऊस इज झिरो. आमच्या घरात कोणी ताट्यात टाकत नाही. जे 20% काकडीची सिल्के वगैरे निघतात ते मी मिक्सरमध्ये बारीक करून आय हॅव डेव्हलप्ड ए कल्चर विच कन्वर्ट्स दॅट वेस्ट इन टू मॅन्युअर इन 24 hours. If you are interested, I can give you that culture free. हा एक हँड-ऑन सर प्रयोग तुमच्याकडे ठेवा. एक हँड-ऑन प्रयोग ठेवू आपण एक 2-3 दिवसात. वी विल मेक दॅट वेस्ट टू मॅन्युअर. मी कल्चर घेऊन आलो. तुम्हाला मी 24 तासात खत करून टाकतो. 24 तासात. आणि काही जादू नाही, हा बाबा नाही की इथलं काहीतरी काढून देतोय. तुमच्या समोर जर दुधाचं दही 12 तासात होतं तर कचऱ्याचं खत 12 तासात व्हायलाच पाहिजे. दॅट इज माय कॉन्फिडन्स अँड आय हॅव रिफ्लेक्टेड दॅट कॉन्फिडन्स इन माय मेथड. करू शकतो. हाऊ मेनी थिंग्स वी कीप ऑन अॅक्युम्युलेटिंग इन आवर हाऊस. स्वित्झर्लंडमध्ये मला खूप चांगल्या गोष्टी शिकायला मिळाल्या. स्वित्झर्लंडमध्ये अशी सगळी मुलं 20 डिसेंबरला एकत्र येतात आणि आपली सगळी खेळणी घेऊन येतात आणि एकमेकांची खेळणी एक्सचेंज करतात. खेळणी त्यांची जी टॉईज आहेत ना ते डम्पिंग यार्डवर जातात. पडून राहत नाही. दे आर युटिलाइज. वाय स्वित्झर्लंड इज रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड? बिकॉज दे अंडरस्टँड द मिनिंग ऑफ मनी. आमच्याकडे पैसे जास्त झाल्यासारखे आपण वागतो. वी कीप ऑन थ्रोईंग मनी. की हा काय आम्हाला विकत घेता येईल, आम्हाला नवीन आणता येईल. हाऊ मेनी स्टुडंट्स हिअर मस्ट बी सेलिब्रेटिंग देअर बर्थडे युजिंग द डिस्पोजेबल डिशेस, डिस्पोजेबल ग्लासेस आणि ते सगळे दुसऱ्या दिवशी ते तिथे पडून राहतात त्या उकिरड्यावरती. त्याच्याभोवती ती डुकरं असतात, त्याच्यावरती डास असतात, मग कुत्री असतात. व्हॉट काइंड ऑफ लाईफ वी आर लिव्हिंग? आर वी सपोज टू बी कॉल्ड ह्युमन बिईंग? स्वतःला आपण ह्युमन बिईंग म्हणू शकतो का हे सगळं पाहिल्यानंतर? अरे ज्या निसर्गाने इतकं सुंदर धरती बनवली, ज्या निसर्गाने इतकं सुंदर काश्मीर बनवलं, ज्या निसर्गाने इतकं सुंदर स्वित्झर्लंड बनवला, त्या निसर्गामध्ये डम्पिंग यार्ड करतो आपण. काय अधिकार दिला आपल्याला डम्पिंग यार्ड बनवण्याचा? आणि कुणी अधिकार दिला डम्पिंग यार्ड बनवण्याचा? कशासाठी दिला? हे कळवा. सो यू टेक अ ओथ. मला त्या कधी कधी शेक्सपियरची भांडण करावं असं वाटतं बरं कसं. हे शेक्सपियरला जर मला कधी भेटला की जेव्हा वरती जाईल तेव्हा शेक्सपियर कुठेतरी भेटेलच. इकडं तिकडं जाताना की शेक्सपियर भेटला की त्याला मला भांडायचं. शेक्सपियर तुम्ही नाटकं खूप छान लिहिली. मॅकबेथ नाटक छान होतं, हॅमलेट सुंदर होतं, जुलियस सीझर छान होतं, अथेल्लो चांगलं होतं. पण तुम्ही एक चुकीची गोष्ट केली. तुम्ही म्हटला व्हॉट इज देअर इन नेम. आम्ही बघा कचऱ्याला कचरा म्हणलं भारतात आणि सगळा भारत कचऱ्याचं राज्य बनलं, साम्राज्य बनलं कचऱ्याचं. पाहावं तिथे कचरा. डम्पिंग यार्ड सगळीकडे आम्ही वाढवत चाललो. आमच्या बिल्डिंगमध्ये सुद्धा आम्ही डम्पिंग यार्ड केलं. किती मोठा पराक्रम आम्ही केला केवळ म्हणजे त्या शब्दामुळे. जर कचऱ्याला आम्ही रिसोर्स म्हणलं असतं तर हे डम्पिंग यार्ड झालं. आमच्या मुलांना कोणी शिकवतच नाही. अरे ते केळाचं साल हे कचरा नाहीये, ते केळाच्या सालाचं खत झालं तरच उद्या येणाऱ्या केळाला साल असेल आणि मग उद्याची पिढी ते केळं खाऊ शकेल. हे त्यांच्यापर्यंत हा मेसेज जात. गेली कित्येक वर्ष मुलांना एक प्रयोग करतोय. तुम्ही पण हा प्रयोग करा तुमच्या घरी. माझ्याकडे एक केमिस्ट्री लॅबमध्ये, तुम्हाला तो शब्द कदाचित माहिती नसेल, डेसिकेटर नावाचं एक उपकरण असतं काचेचं. डेसिकेटर म्हणजे काचेचं घमेलं समजा. हे काचेचं घमेलं माझ्याकडे खूप दिवस रिकामं पडलं होतं. PRCC म्हणतंय आमच्याकडे अशा गोष्टी अनेक पडलेल्या आहेत. तर त्याच्या एक घमेलं मी घेतलं, लोकांना विचारलं हे काचेचा डेसिकेटर कोणाला वापरायचा आहे का? अगदी या आकाराचा असतो बरं काय. तो डेसिकेटर जो असतो ना तो या आकाराचा असतो. या आकाराचा.
आणि ज्याला म्हणजे झाकण असतं. तर या आकाराचा डेसिकेटर घेतला, काचेचा डेसिकेटर आहे, म्हणजे बाहेरून त्याच्यामध्ये सूर्य हात येऊ शकतो, सूर्यप्रकाश. आणि या डेसिकेटर मध्ये 800 ग्रॅम माती, 200 ग्रॅम खत आणि 600 मिलीलीटर पाणी, हे सगळं मी त्याच्यात टाकलं. म्हणजे आपण एक कुंडी बनवली, काचेची कुंडी. सायंटिस्ट असल्यामुळे श्रीमंत सायंटिस्ट काचेची कुंडी बनवली. आणि त्या काचेच्या कुंडीमध्ये हाताला दिसेल ते मनी प्लांट घेतलं आणि त्याच्यामध्ये लावलं. आता जर मला तुळशीचं रोप दिलंय तसं मनी प्लांट मी लावलं. आणि 3 महिने त्याला झाकण लावलं नाही. त्याच्यातनं जितकं पाणी बाष्पीभूत होत होतं, जितना पानी उसमें से निकल जा रहा था हवा में, उतना पानी मैं उसमें डालता था. क्योंकि मेरे पास एक वजन काटा था, बैलेंस था, जिसके ऊपर मैं वजन करके बता सकता था इसमें से 40 ml पानी कम हुआ, 50 ml पानी कम हुआ. उतना पानी रोज उसमें डालता था. मतलब मैंने 600 ml पानी उसमें मेंटेन रखा था. मिट्टी डालने का तो कोई सवाल नहीं था, खाद डालने का कोई सवाल नहीं था. वो प्लांट बढ़ने लगा और उसको क्या खाने को मिला. वो कांच का बर्तन है या मिट्टी का पॉट है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता. उसमें पश्चिम दिशा में मैंने रखा था ये इसको, और वो पश्चिम दिशा से आने वाली सूरज की किरणें उसके ऊपर गिरती थी और उसका जो प्रकाश संश्लेषण है वो चलता है. प्रकाश संश्लेषण क्रिया चलती है. क्या होता है उसमें 6CO2 plus 6H2O plus energy of light will give you C6H12O6, म्हणजे ग्लूकोज बनती है. और 6O2 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स निर्माण होते हैं. ये है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया. वो उसमें चलती रही. प्लांट बढ़ने लगा. 2 पत्ते के 3 पत्ते हो गए, 3 पत्ते के 4 पत्ते हो गए, 6 पत्ते हो गए. और 3 महीने के बाद, तो तारीख मुझे याद है 31 अगस्त 1999, उस तारीख को मैंने डेसिकेटर का ढक्कन लेके एरांडाइट लगा के सील कर दिया. और वो सील करने के बाद उधर ही छोड़ दिया जहां वो पश्चिम की सूरज की किरणें आती थी. आज 31 अगस्त 1999 के बाद 24 साल सब हो रहे हैं. इस 31 अगस्त 2024 को 25 साल पूरे हो जाएंगे. उसमें पानी की एक बूंद भी बाहर से नहीं दी है. पूरा पेड़ हरा भरा है. अंदर कीड़े मकोड़े जिंदा है, सब सूक्ष्मजीव जिंदा है. और वो सिलसिला वो पत्ते का, वो पौधे का चल रहा है सालों से, 25 साल. विश्वास आता है मैं जो बोल रहा हूं? क्यों नहीं आता विश्वास? बोलो. एक भी बूंद पानी नहीं डाला, 25 साल हो गए. एक भी बूंद, कुछ भी नहीं डाला बाहर से. सील किया हुआ है एरांडाइट से. ढक्कन खोला ही नहीं है, ना कुछ भी बाहर से गया नहीं है. सिर्फ सूरज की किरणें जाती है. क्यों नहीं विश्वास? हो नहीं सकता है ना. अगर ये पौधा मुझे आप सर ने दिया, ये पौधा मैंने जाके निधि के गेस्ट हाउस में रख दिया और 4 दिन पानी डालना भूल गया, ये बेचारी तुलसी मर गई. बिल्कुल सही है. तो सर आप क्या बोल रहे हैं? ये सब पद्मश्री है करके कुछ भी बोलते जाओ, हम सुनते जाए. हम विश्वास क्यों रखें आपके ऊपर? मैं आपको विश्वास क्यों रखने का वो कर. मेरा वो जो ढक्कन वाला बर्तन है, डेसिकेटर है, उसमें से जैसे बाहर से कुछ नहीं गया, वैसे अंदर से भी बाहर कुछ नहीं गया है. वो 600 लीटर पानी, 600 मिलीलीटर पानी मैंने डाला. आज भी 600 मिलीलीटर पानी उस डेसिकेटर में है. रोज वो पौधे लेते हैं, वो रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन वाटर वेपर छोड़ते हैं. वो वाटर वेपर कंडेंस होती है और मेरे डेसिकेटर में रोज बरसात होती है. सुबह रोज बरसात होती है. जो मैंने रिएक्शन आपको बताई, 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6H2O प्लस लाइट,
because light is coming from outside, CO2 and H2 are there inside, C6H12O6 glucose is made and 6 oxygen is made. So oxygen regenerate होगा. रेस्पिरेशन में उल्टा होता है, C6H12O6 plus ATP is converted to 6CO2 plus 6H2O. CO2 और ऑक्सीजन का जल चक्र चालू है, पानी का जल चक्र वहाँ चालू है, एलिमेंट्स का चक्र चालू है. जो पत्ता गलता है, अभी मेरे पौधे को 42 पत्ते हैं, एक भी पत्ता ज्यादा नहीं है. जब एक पत्ता गलता है तभी नया पत्ता आता है, इक्विलिब्रियम सेट हो गया है. और ये पत्ता जब गलता है तब सूक्ष्मजीव उसे खा लेते हैं और वो सूक्ष्मजीव नई तरीके से नए पत्ते को वो संजीवनी देते हैं. तो ये जो चक्र है, ये छोटी पृथ्वी मैंने बनाई है. ये बड़ी पृथ्वी किसने बनाई मुझे नहीं मालूम. आप बोलिए बोले शंकर ने बनाई, विष्णु ने बनाई, जीसस ने बनाई, किसी को भी आप नाम दीजिए. हमारे पास सर्टिफिकेट का ऑप्शन है, इसका भी नाम दे सकते. लेकिन इस धरती माता पर भी बाहर से सिर्फ सूरज की किरणें आती है. ये मेरे छोटे पृथ्वी में भी बाहर से सूरज की किरणें आती है. मेरे उदेसी के घर में गलता हुआ जो पत्ता है वो कचरा नहीं है. फिर हमारे यहाँ गलते हुए पत्ते कचरा कब से बने? ये भी रिसोर्स है, और इसको आप पढ़ते हैं 8वीं 9वीं में, आपको 10वीं में पढ़ाएंगे. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर. इस दुनिया में कुछ अमर है तो सिर्फ पीरियोडिक टेबल अमर है. जितना कार्बन धरती में शुरू में था, धरती जब बनी थी 400 करोड़ साल पहले, तो जितना कार्बन था उतना ही कार्बन आज है, जितना हाइड्रोजन था उतना ही हाइड्रोजन आज है, जितने 118 एलिमेंट्स थे उतने ही आज है. उसमें 1 नैनोग्राम का भी फर्क नहीं हुआ. समझने में गलती हो गई हमारी. ये रिसाइकलिंग में हम कहीं तो भूल गए और हम कचरे के ये डंपिंग यार्ड बढ़ाते रहे हैं. सारा रिसोर्स कब वापस आएगा और कब हम इसे इस्तेमाल करेंगे? लोग कहते हैं कि प्रलय कब होगा, प्रलय तो शुरू हो चुका है. अब हम कब बाहर जाएंगे, इतना ही सवाल बाकी है. जब ये सारा प्रलय, ये प्लास्टिक का प्रलय है, ये कचरे का प्रलय है, ये कचरे के प्रलय से हम बह जाएंगे, ये सुंदर दुनिया का नुकसान हम करेंगे, ये मुझे स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है. इसलिए ये सारा विज्ञान धारा का जो प्रोग्राम मैंने हाथ में लिया कि कम से कम आने वाली पीढ़ी को हम सतर्क करें. ये कोई दुनिया में कचरा करके चीज नहीं है. तो हम आज दूसरी शपथ देंगे, हाथ ऊपर कीजिए. हम अपने शब्दकोश से अभी से कूड़ा शब्द हटा रहे हैं और हर चीज को कैसे पुनर्चक्रांकित करें इसकी जरूर कोशिश करेंगे. बिल्कुल. अरे वाह, एक प्रोजेक्ट देने वाला हूँ, बाद में पता चलेगा. अभी किसी को कुछ सवाल है पर बीच में किसी के मन में कुछ सवाल है? सर मेरा नाम हर्षवर्धन नागपुरे है और मैं नवयुग विद्यालय से हूँ. सर मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने जैसे बताया कि जो प्लांट है आपने उसको एक कांच के रेफ्रिजरेटर में आपने उसको प्रिजर्व करके रखा था, तो ये आपको आइडिया मतलब कहाँ से आया? कई सारी चीजें ऐसी होती है बेटे कि उसका स्रोत बताना बहुत मुश्किल हो जाता है. जैसे किसी ने अगर मुझे पूछा मैं वैज्ञानिक कैसा बना, तो मैं बता सकता हूँ जो आपके वो टीचर ने, जो अनाउंसर थी, उन्होंने बताया कि स्कूल में जब डॉक्टर होमी भाभा का निधन हुआ था तो सर ने बहुत अच्छा लेक्चर दिया था. और लेक्चर देने के बाद मेरे मन में 7वीं में था मैं, तो मेरे मन में ये पक्का निश्चय मैंने किया मैं वैज्ञानिक बनूंगा. तो ये तो मैं शर्त बता सकता हूँ. लेकिन ये जो चीज़ आपने पूछी वो बहुत अहम चीज़ है. इसके जो छोटे छोटे बीज है वो मेरे दिमाग में मेरे माता जी ने, मुझे याद है कि 1964 की लक्ष्मी पूजा, दिवाली की लक्ष्मी पूजा थी,
और वो लक्ष्मी पूजा के दिन मेरे मम्मी जी ने मेरे हाथ में 4 आने रखे थे। मेरे पावली बोलते थे उसमें, उस जमाने में वो पावली रखी थी और मुझे भेजा था बाजार में, बेटे जाके केरसुणी खरीद के ले आओ। केरसुणी माहिती तुम्हाला? लहान छोटी छोटी झाडू असतात, पूर्वीच्या काळी खाली जमिनीवर बसून झाडून काढायचे, तो त्याला केरसुणी म्हणतात, तिथे काइंड ऑफ झाडू। तो वो 4 आने का झाड़ू खरीदने को कहा। मैंने मम्मी जी को पूछा, मम्मी जी सब लोग नए कपड़े खरीदते हैं, पटाखे खरीदते हैं, आप मुझे झाड़ू खरीदने को क्यों कह रहे? तो उन्होंने कहा मैं आपको कल बताऊंगी, कल लक्ष्मी पूजा है। तो लक्ष्मी पूजा के दिन शाम को जब लक्ष्मी की पूजा होनी थी, तो उस लक्ष्मी की पूजा के साथ साथ मतलब जो 10 रुपए का एक नोट था, मम्मी जी के पास कोई गहने तो नहीं थे, मंगलसूत्र का एक कुछ टुकड़ा था सोने का, वो और ये झाड़ू केरसुणी उन्होंने साथ में रखी और मुझे कहा बेटे इसकी पूजा करो। तो मैंने कहा ये गोल्ड की पूजा तो मैं समझ सकता हूँ, 10 रुपए की पूजा तो समझ सकता हूँ, लेकिन ये झाड़ू की पूजा क्यों करें? तो मम्मी जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया था। इतना सुंदर उत्तर आज तक किसी साइंटिस्ट ने मुझे नहीं दिया है। मम्मी जी ने कहा था बेटे तुम जिसे लक्ष्मी केरसुणी दे रहे हो वो लक्ष्मी की जुड़वा बहन है, उसको अलक्ष्मी कहते हैं हमारी संस्कृति में। तो एक ट्विन सिस्टर का फिर पूजा करना और दूसरे को अपमान करना हमारे संस्कृति को शोभा नहीं देता, इसलिए पूजा दोनों की होनी चाहिए। और उन्होंने कहा था ये दोनों को सह अस्तित्व होता है, बहुत अच्छा वर्ड यूज किया था, वो वैज्ञानिक नहीं थी, 7वीं पास थी, लेकिन एक शब्द तिने वापरला होता, याला सह अस्तित्व असतं, वो था एक्झिस्टिंग साइमल्टेनियसली। अगर एक है तो दूसरी रहेगी, एक नहीं है तो दूसरी नहीं है। तो इसलिए दोनों की पूजा होनी चाहिए। और पूजा का अर्थ मुझे मम्मी ने इतना सुंदर सिखाया था, आज तक कोई वापस किसी प्रीस्ट ने वो नहीं सिखाया। वो उन्होंने कहा था बेटे पूजा करना मतलब क्या है? हल्दी कुमकुम लगाना, हार डालना, आरती करना और नैवेद्य खुद खा लेना, इसको पूजा कहते हैं क्या? नहीं, पूजा किसी होती है 364 दिवस सेवा करना, 364 दिन लक्ष्मी माता की और केरसुणी की पूजा कर सेवा करना, मतलब वो काम करना ठीक तरह से, जो काम दिया है वो ठीक करना। और 365 दिन खुद को याद दिलाना कि माते मुझे अगले 364 दिन आपकी पूजा करने का मौका मिले, सेवा करने का मौका मिले, यही मेरी आपको प्रार्थना है। इसे पूजा कहते हैं। पूजा कहना मतलब मंत्र पढ़ना, आरती करना, उसके सामने बैठे रहना, ये नहीं है बेटा। उसका जो हमने जो काम हमें दिया है भगवान ने, वो काम करते रहना। हमारे अब्दुल कलाम जी आपको याद है 83 वर्षाचे असताना मुलांशी बोलताना त्यांनी प्राण ठेवला होता, ते काम त्यांना जे करायला पाठवलं होतं ते काम शेवटच्या श्वासापर्यंत ते करत होते। दॅट इज कॉल्ड पूजा। ये पूजा होती है। हम करते पूजा ऐसी, हम अपना कितना काम कितना पैशन से इतना निष्ठा से करते रहते ये समझ। तो ये ऐसे छोटे छोटे जो नुक्से हुए। और एक नुकसान मुझे याद है, जब हम स्कूल में प्रवेश लिया था तो सर ने हमें पेड़ का महत्व बताया। और पेड़ का महत्व बताते समय सर ने एक श्लोक कहा था, मूलम मदस्याथम अश्वत्थम प्राहुर्व्यम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद सवेदविद। श्री कृष्ण ने कहा था अर्जुन से, ये पूरा विश्व जो है ये वटवृक्ष जैसा है, मैं उसका ध्यान उसकी तरफ नहीं देखता हूँ। मैं हमारे टीचर ने बताया था ये वटवृक्ष आपकी लाइफ की संजीवनी है, आज मुझे पता चलता है। आप सर इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो कितना? मैं ईडी से नहीं आया हूँ, मैं साइंटिस्ट हूँ, अप्रोक्सीमेटली। अगर बिल नहीं भरा तो क्या होता है? काट देंगे। आप मोबाइल यूज करती, किसको करती है नहीं मुझे, मोबाइल यूज करते हैं। बिल अगर रात को 12 बजे खत्म होने वाला है तो रॉयल्टी करके आपको 1 सेकंड ज्यादा मिलता है नहीं? कड़े बहुत अच्छी साड़ी है, अंदर 1000। ऐसा नागपुर में कोई शॉप है जहाँ फुकट मिलती नहीं? दूध देती हो? कितना लेती हो? 1 लीटर। कितना पैसा देना पड़ता है? 54। कोई गाय आपके फ्री में नहीं मिल जाती? अरे अच्छा काम कर रहे हो, सारला में पढ़ा रही हो, अगले जनरेशन को फुकट ले लो दूध।
कोई भी चीज फुकट नहीं मिलती, बराबर। सर सबसे अहम चीज क्या है जिंदगी में, जिसे आप बिना एक मिनट भी जी नहीं पाते। कितना ऑक्सीजन यूज करते है नहीं, आपको मालूम नहीं क्योंकि आप बिल देंगे। अगर बिल देंगे तो आपको पता चलेगा। और किसी ने कहा कि ऑक्सीजन का सप्लाई कट कर दूंगा तो क्या होगा, भाग भाग के पैसे बढ़ेंगे। आज मैं आप लोगों को आपके ऑक्सीजन का बिल देने वाला हूँ, ठीक है, ठीक तरह से सुनिए, मैं आपको ऑक्सीजन के बिल देने वाला हूँ। आप लोग लड़की हो, लड़का हो, एल्डर्स हो, कोई भी हो, बुजुर्ग हो, बूढ़ा हो, मेरे जैसे, हमारी इस तरह नजर लग रही है, लागले मित्र ने पहले थी, हम भी तो हर एक आदमी जो चिंता है, हम तो पर्यावरण छान सांगितलं, जनन आणि मरण किती रे अंतर, एका श्वासाचं रे अंतर। त्या माणसाला चक्कर आली, पाहिलं हात नाकापासून येतो, जिवंत आहे, हां चला काहीतरी काम करू, एक श्वास, सो इम्पॉर्टंट। त्या श्वासाची किंमत मी तुम्हाला सांगतो। यू ब्रीथ इन 21,000 टाइम्स इन अ डे, किती 21,000 बार आप श्वास लेते हो। अगर विश्वास नहीं तो गिनना शुरू करो अभी से, कल तक ये बैठे रहेंगे, 21,000 आए। अगर वो मुश्किल है तो मेरे ऊपर विश्वास है, क्या करोगे, विश्वास आसान चीज है। 21,000 बार आप श्वास लेते, कुछ 500 इधर उधर होते, लोग बोलते कि हम वो रामदेव बाबा के साथ आसन करते, कुछ नहीं, शवासन करते, सोते। पूरे आसन करने की चीज बहुत डिफिकल्ट होती है, ये करते हो कैसे। तो 21,000 बार श्वास लेते हो, 21,000 बार श्वास लेते समय आप शरीर में 17,000 लीटर हवा देते, 17,000 लीटर। तो 17,000 लीटर हवा में, हवा का कोई कॉन्स्टिट्यूशन पता है, एयर में क्या क्या होता है, कितना परसेंट होता है, आजा आजा, अरे आजा, हवा में कितना ऑक्सीजन होता है, कितना परसेंट। सर दिस इज नॉट ए ब्लेम टू हिम, दिस इज नॉट ए ब्लेम टू स्कूल, दिस इज अ ब्लेम टू मी, टू द सिस्टम। हमने ऐसी सिस्टम बनाई, हम जो चीज़ें 5वीं में पढ़ाते हैं वो 7वीं में 8वीं में बच्चे भूल जाते हैं, ये हम नहीं चाहते। हमारा विज्ञान धारा का कार्यक्रम यही है की हम विज्ञान तुमच्या रक्तात भिनलं पाहिजे हो। जोपर्यंत रक्तात भिनत नाही ना तोपर्यंत ते शिकत नाही आपण। बेटे मैं बताता, ऑक्सीजन इज 20%, डोंट फॉरगेट इट अगेन। You all remember, air contains 21% oxygen, 20.9 to be precise. Carbon dioxide 0.04, nitrogen 78.9 or 80%, you can say 79, argon 0.13 and पाण्याची वाफ. Then छोटे छोटे काही रेडॉन्स वगैरे असतात, but basically oxygen, nitrogen, carbon dioxide, these are 3 important gases which are present in air. ठीक है? तो अगर ये 17,000 लीटर हवा हम शरीर में लेते हैं तो उसमें से 20% हिसाब के लिए पकड़िए ऑक्सीजन होता है, तो 3,500 लीटर ऑक्सीजन हम लेते हैं। तो 3,500 लीटर ऑक्सीजन को अगर हम तोले, MST कैन एक्चुअली वे दैट। इफ यू रिमेंबर दैट केमिस्ट्री के टीचर तुम्हारा को पता होगा, 1 ग्राम मोल ऑफ ए सब्सटेंस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर्स, उस हिसाब से 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल ऑक्यूपाई 22.4 लीटर। तो 3,500 लीटर ऑक्सीजन की वजन होता है 3 किलोग्राम, अप्रोक्सीमेटली इट इज 2.8 किलोग्राम। और कोरोना में हमें ऑक्सीजन की कीमत पता चली, वो ऑक्सीजन सिलेंडर में जब बेचा जाता है तो 11,000 रुपये किलो के आसपास बेचा जाता है। 3 किलो की कीमत 33,000 हो गई, 21,000 वेळा श्वास घेता। अरे तुमच्या प्रत्येक श्वासाला निसर्गाला 1.5 रुपये मोजावा लागतो रे। श्वास घेतला 1.5 रुपये, सप्लाय कट करीत नाही। By the time 33,000 you have paid, you will not have anything left with you for that day. So where does this money, this comes from?
त्यांनी जे प्रश्न विचारला त्याचं उत्तर मला त्यावेळेला सरांच्या त्याच्यातून मिळालं होतं. एक पिंपळाचं झाड लावा किंवा एक वडाचं झाड लावा, त्याच्या फोटोसिंथेसिसमधनं 3 किलोग्रॅमपेक्षा जास्ती ऑक्सिजन निर्माण होईल. तुमचा रोजच्या ऑक्सिजनचं बिल ते झाड देईल. दॅट इज व्हॉट इज रिक्वायर्ड. आमचे भगवान व्यास म्हणतात सभापर्वामध्ये, प्रत्येक माणसाच्या शरीरात 23 एलिमेंट्स असतात, 23 मूलतत्व, आणि ती 23 मूलतत्वांचं पुनर्चक्रांकन होण्यासाठी 19 झाडांची गरज असते. प्रत्येक माणसाने 19 झाडं लावावीत, हा नियम आहे, हा अलिखित नियम आहे. आणि हा नियम आमच्यापैकी किती लोकांनी पाळला आहे हा प्रश्न स्वतःला करा. मी कोणाला एम्बॅरसिंग प्रश्न विचारायचे नाही, मला कोणाला खाली बघायला लावायचं नाही, बट आय विल लाईक टू आस्क दॅट क्वेश्चन. आमच्या विज्ञान भारतीनं माझी एक रिक्वेस्ट करतही असतील ते, त्याच्यात मी एक मला सांगण्याची गोष्ट अशी आहे की काम करणारी लोक खूप आहेत. ते शरद काळे एकट्याला सगळ्याला ज्ञान आहे आणि त्याला सगळं येतं असं अजिबात नाही आहे. देर आर मेनी नरेंद्र कासेकर हू आर डुईंग वर्क ॲट व्हेरियस प्लेसेस. त्यांचं आपल्याला नेटवर्किंग करायचं आहे, त्यांचं कोऑर्डिनेशन करायचं आहे. आपल्याला त्यांचा नंबर खूप कमी आहे, तो नंबर वाढवायचा. दॅट इज वॉट आय हॅव गॉट दॅट आयडिया ऑफ विज्ञानधारा अँड मेकिंग ए नेटवर्क. म्हणून मला पुस्तक सुद्धा तेवढ्यासाठी सुरू करायचं. देर इज नो कॉम्पिटिशन विथ सृष्टी ज्ञान ऑर एनिथिंग, की जितक्या जास्ती गोष्टी आपण लोकांपर्यंत पोहोचवू शकू तितक्या पोहोचवणं आजची काळाची गरज आहे, काळाची गरज नाही. काळाची गरज काय, काळ्या आहे तोपर्यंत राहील, त्याच्यानंतर ती गरज संपेल, पण ही काळाची गरज आहे, द नीड ऑफ द आवर. सो दॅट्स वाय वी मस्ट डू दीज एफर्ट्स टुगेदर. तुझा प्रश्न छान होता. आणखी काही प्रश्न आहेत? सर, माझे नाव देवेंद्र प्रमोद चव्हाण, मी वर्ग 7च्या विद्यार्थी आहे. माझ्या शाळेचे नाव नवीन विद्यालय आहे. माझ्याकडे 3 प्रश्न आहेत तुमच्यासाठी. पहिला प्रश्न असा की तुम्हाला असं कसं वाटलं की जे माठ होतं काचेचं जे होतं त्याच्यामध्ये 800 ग्राम माती, 200 ग्राम खत आणि 600 मिलीलिटर पाणी, असं तुम्हाला का बरं वाटलं? शाबास. पुढचा. दुसरा प्रश्न असा आहे की तुम्हाला जेव्हा तुम्ही ते सगळं टाकलं त्यानंतर तुम्हाला असं का वाटलं की तुम्हाला जे मनी प्लॅन्ट होतं ते तिथे लावायचं होतं? बरोबर. आणि थर्ड प्रश्न असा आहे की जे सगळे आहेत या सगळ्यांना असं का वाटतं, सगळ्यांना माहीत आहे की जी झाडं आहेत ते आपल्याला ऑक्सिजन देतात, तरी पण सगळे त्या झाडाला का बरं मारतात? बरोबर. त्याच्यातले 2 प्रश्नांना उत्तर देईल, तिसऱ्या प्रश्नाचं उत्तर तुम्ही द्यायचं. सगळे तोडतात तर मला काय माहिती. मी तर सांगेन, मी माझ्या आयुष्यात एकही झाड तोडलं नाही. तुझा पहिला प्रश्न आहे की तुम्ही 800 ग्रॅम माती आणि 200 ग्रॅम खत आणि 600 ml पाणी का घेतलं. त्याला साधन घेणं त्याच्या पाठीमागे बेसिक सायन्स आहे. ही एक कुंडीचा आकार किती आहे, याच्यात तू 1 किलो माती घेशील का? नाही घेऊ शकणार. त्याच्यामध्ये 200 ग्रॅम माती. सो डिपेंडिंग ऑन दॅट डेसिकेटर साईज, की त्याच्यामध्ये थोडं वरती मला ते फील करायचं होतं, म्हणून त्या एन्व्हायरमेंट किती असेल एवढं कॅल्क्युलेशन मी केलं आणि त्याप्रमाणे 800 ग्रॅम माती आणि त्या मातीला साधारण 10% 15% सेंद्रिय खत पाहिजे म्हणून मी 200 ग्रॅम खत टाकून दिलं. आणि कुठल्याही मातीमध्ये झाड वाढवायचं असेल तो किसी भी मट्टी में आप पानी पेड़ लगाना है तो उसमें 60% मॉइस्चर होना चाहिए. तो या 800 ग्रॅम प्लस 200 1000 ग्रॅम, 1000 के 60% म्हणजे 600 ml पाणी त्याच्यामध्ये पाहिजे म्हणून 600 ml पाणी. आणि मनी प्लांट का समोर होतं म्हणून मनी प्लांट. देयर इज नो अदर आन्सर टू दॅट. होतं ते समोर मनी प्लांट, ते मी मनी प्लांट लावलं. तुझा जर उद्या मोगरावर लावला, गुलाब लावला तरी हरकत नाही. कोणीतरी पेरिनियल झाड म्हणजे ते झाड मरणाला नको आहे, तर गहू वगैरे लावू शकणार नाही, शुगर केन लावू शकणार नाही, पण अशी जी ऑर्नामेंटल प्लांट्स आहेत ती तुळस सुद्धा तू ठेवू शकतो. ती डेसिकेटरमध्ये तुळस अशी ठेवली ना तरी ती त्याचा अक्षय पात्रतेचं निर्माण करू शकतो. ओके, आलं लक्षात? नेक्स्ट. सर, my name is हर्ष पटेल. आज इंडियाची जे पॉप्युलेशन आहे ते चायनापेक्षा वाढले होते, 140 करोड आणखी वाढले आहे. तर प्रत्येक इंडियनने असं काय करायला पाहिजे की कंट्रीचे डेव्हलपमेंट होणार? That's what it's a good question actually, and the whole purpose of today's lecture is what you do. आपण सांगतो की हे केलं पाहिजे, ते केलं पाहिजे, पण मी जर माझा कचरा मॅनेज केला तर डम्पिंग यार्ड संपतील भारतात. आणि डम्पिंग यार्ड संपली तुमच्या लक्षात येत नाही मुलांना. त्या मी तुम्हाला एक छोटासा कॅल्क्युलेशन सांगतो. चांगला प्रश्न विचारला.
तुला एक कॅल्क्युलेशन तुम्हाला सांगतो छोटंसं बरं का, की गोवा राज्य तुम्हाला माहिती आहे, तर गोवा राज्यामध्ये 3 लाख मेट्रिक टन कचरा गेल्या 6 वर्षात आम्ही एका ठिकाणी गोळा केला. 3 लाख टन. मुंबईमध्ये 3 लाख टन कचरा 30 दिवसात जमावतो, तर ती गोष्ट वेगळी, किंवा 3 वर्षात जमावतो. पण इथे तो 6 वर्षाचा कचरा एकत्र केला आणि त्या 3 लाख टनामधला एकही ग्राम तिथे कुठं तुम्हाला दिसणार नाही, डम्पिंग यार्ड नाही, काही नाही. म्हणजे 3 लाख टन रिसोर्स हे पुन्हा पुनर्चक्रांतित केले. त्यातला जो 1,50,000 मेट्रिक टन ओला कचरा होता, त्याचा आपण मिथेन बनवला. त्या मिथेनपासून रोज 1 मेगावॉट इलेक्ट्रिसिटी बनवली. म्हणजे तेवढं डिझेल आणि कोळसा वाचला. आणि उरलेला 1.5 लाख टन जो कोरडा कचरा होता, तो प्रत्येक कचरा वेगळा करून प्लास्टिकला वेगळा, मेटल्स वेगळे, बाटल्या वेगळ्या, असं सगळा तो पुनर्चक्रांकणाला पडतो. हे सगळं तर इथे करू शकतो, कारण तिथे फ्री हँड मिळाला होता. पण जर प्रत्येक माणसाने घरातच हे केलं, हे तुम्ही म्हणाल तर आम्ही त्या बिस्किटाच्या पॅकचं काय करायचं, बरोबर आहे. पण एक महिनाभर वेगळं ठेव आणि कबड्डीवर दे, तो बरोबर योग्य ठिकाणी घेऊन जाईल. डम्पिंग यार्डवर जाऊन देऊ नको, विषय संपला. तुमच्याच स्वीपरला सांगायचं की आम्ही आमच्या सोसायटीमधलं ड्राय वेस्ट तुला देतो आणि त्याचे पैसे त्याला मागू नका. तुमच्याकडे तेवढे तुम्हाला देवाने भरपूर दिले, तेवढे पैसे देतात ते देऊ नका. त्याला तू वापर, त्याला आनंद होईल. डम्पिंग यार्डवर जाऊन ते वेगळं काढायचं घाणीत हात घालून आणि मग ते विकून पैसे मिळवायचे, अशी लोक असतात रे ते. त्यांना जर आपण घरी वेगळं दिलं, आमचा कोरडा कचरा एका पिशवीमध्ये ठेवला, तर विषय संपला. हे करू शकतो. दुसरं एक तुला कवितेतून उत्तर देतो माझ्या, की सोच के पहले घबराता था मैं, सोच के पहले घबराता था मैं, कहीं मुझमें का इंसान हो तो नहीं रहा है. सोच के पहले घबराता था मैं, कहीं मुझमें का इंसान हो तो नहीं रहा है. जब मैं वातानुकूल महल में अपने रेशम की कंबल लेकर सोता हूँ, जब मैं वातानुकूल महल में अपने 23 डिग्री टेम्परेचर लगा के कंबल लेकर सोता हूँ, तो मुझे चैन की नींद कैसे आती. आधी आबादी पंखा भी नहीं खरीद सकती, ये मेरे दिमाग में नहीं आता कि सिर्फ मेरा एयर कंडीशनर सिर्फ पोल्यूशन फैला रहा है, बाकियों के एयर कंडीशनर पोल्यूशन नहीं फैला रहा है. जब मैं बाजार जाता हूँ हाथ में थैली लिए बिना और सब्जियां भर भर के प्लास्टिक की थैलियां लाता हूँ, तो मेरे दिमाग को मेरे कोई शर्म नहीं लगती है. क्या सिर्फ मेरी प्लास्टिक की थैलियां प्रदूषण फैला रही है? इनकी प्लास्टिक की थैलियां प्रदूषण नहीं फैला रही है? कहीं मुझमें का इंसान तो नहीं रहा. जब मैं पार्टियां देता हूँ गजब की और भर भर के थालियां खाना खिलाता हूँ ऐसे मित्रों और सज्जनों को जिनको खाने की तो कोई समस्या नहीं है, खाने से समस्या हो सकती है. पार्टी के वेटर तरस रहे खाने के लिए, वो मुझे नजर नहीं आते, कहीं मुझमें का इंसान खो तो नहीं रहा है. जब मैं आलिशान गाड़ी में बैठ के जाता हूँ, तो मेरे गाड़ी से होता हुआ प्रदूषण मुझे नजर नहीं आता. या सिर्फ मेरी गाड़ी प्रदूषण फैला रही है, दूसरों की गाड़ी प्रदूषण नहीं फैला रही, कहीं मुझमें का इंसान खो तो नहीं रहा. जब मैं मोबाइल लेके हाथ में वीडियो चित्रण करता हूं ऐसी दुर्घटना का या किसी की मृत्यु का, तो आगे जाके मैं मदद नहीं करता, ना मेरे हाथ कांपते हैं, क्योंकि मुझे आप वापस आके वो वीडियो फेसबुक पे डाल के लाइक्स कमाने. कहीं मुझमें का इंसान तो नहीं रहा है. लेकिन आजकल आनंद की बात यह है दोस्तों, आजकल मैं बिल्कुल नहीं घबरा, क्योंकि मेरे अंदर का इंसान मौत की नींद सो चुका है. मैंने अब सोचना ही बंद किया. ये चाहिए मुझे आपसे संवेदना होनी चाहिए प्रकृति की तरफ. संवेदना सबसे महत्वपूर्ण शब्द है जो हम खो चुके हैं. की माझ्या भोवतीच्या पर्यावरणामध्ये मी काय कॉन्ट्रीब्युशन करू शकतो. तुझ्या मनात प्रश्न आला, दिस इज इटसेल्फ इज अ गुड इन्स्पिरेशन फॉर यू टू डू समथिंग इन द फ्युचर. हे मनात येणं सुद्धा फार महत्वाचं आहे.
लोक माझ्या स्वतःसाठी काय वाटेल ते करायला तयार आहेत. पीपल आर रनिंग आफ्टर मनी. मुलांना माझ्या उदाहरणावरून सांगतो तुम्हाला की 2 वेळची रोटी आणि जर छप्पर असेल घरावर तर पुढच्या कुठल्याही पैशाला किंमत नसते, तर फक्त चिंता निर्माण होते. मनी इज नॉट एव्हरीथिंग यू कॅन बाय इन दिस वर्ल्ड. मनी इज ओनली एक साधन, ज्याला आपण साधन म्हणतो. ठीक आहे, 2 वेळची जेवणाची आपल्याला काळजी नको आहे, एक आजचं घर पाहिजे, एव्हरीथिंग इज फाईन, बट डोंट रन आफ्टर. दॅट इज नेव्हर दॅट शुड नेव्हर बी द एम. मनी इज ओनली दी साधन, इन्स्ट्रुमेंट आहे फक्त. यूज इट प्रॉपरली, यूज इट इफेक्टिव्हली, हे मला तुम्हाला सांगायचं. नेक्स्ट क्वेश्चन. Sir, my name is Sanskriti Kupendra Kathale and I am from 9th standard. My school name is Sivi Adarsh Vidya Mandir. Sir, as you say us, we should stop plastic. It harms our environment. How should we stop plastic? Yes. How should we recycle it at our home? Extremely good question. How should we stop it? You're right. You are 100% right on your question. Now this plastic is, you need not bother. ठीक आहे. ही जी खुर्ची बसली मुलगी, ही जर लाकडी खुर्ची असती किंवा लोखंडी खुर्ची असते तर तेवढं लोखंड लागलं असतं किंवा तेवढं एक झाड लागलं असतं, आपण ते वाचवतो. प्लॅस्टिक पर से इज नॉट बॅड. रिमेंबर दिस. तुम्ही हा एक मंत्र लक्षात ठेवा, प्लास्टिक वाईट नाही आहे. प्लास्टिकचे हँडलिंग जे आपण करतो ते वाईट आहे. बाजारात जाताना आईला सांगायचं, आई मला तुझ्या साडीची किंवा बाबांच्या पॅन्टची पिशवी माझ्या हातात दे आणि ती कापडी पिशवी घेऊन बाजारात जाऊन भाजी आणायची. Don't bring any plastic bag from outside for vegetables, for small little things, आणि तुमचं काम झालं. This is what I expect only from children like you, की तुम्ही आईला सांगा की घरामध्ये पातळ प्लास्टिकचे पिशव्या येऊ देऊ नका, कारण ते पुनर्चक्रांकनासाठी दॅट रिसायकलिंग इज व्हेरी डिफिकल्ट अँड दॅट इज द वन विच क्रिएट्स मॅक्सिमम प्रॉब्लेम इन दी एन्व्हायरमेंट. सो यू शुड स्टॉप दॅट. लोक मला म्हणतात, सर यू आर सो पॉवरफुल, वाय डोंट यू बॅन इट. आय सेड आय विल नेव्हर बॅन इट. यू बॅन इट. तुम्ही जर बॅन केलं, तू जर उद्या व्हेजिटेबल मार्केटकडे गेलीस आणि त्या सांगितलं वेंडॉरला गिव्ह मी दिस इज दिस बॅग, तो काय वेळ आहे का प्लॅस्टिकची बॅग द्यायला? ही विल बी हॅपी बिकॉज ही विल सेव्ह फॉर अन अस फॉर बाईंग दॅट बॅग. ही विल नॉट स्पेंड दॅट मनी. तो म्हणेल की सगळ्या लोकांनी असंच केलं पाहिजे. एका साडीच्या, बरं का टीचर, एका साडीच्या 50 पिशव्या होतात आणि एक साडी नक्की तुम्ही सॅक्रिफाईस करू शकता. कपाट उघडलं की साड्या पडतील इतक्या साड्या असतात. कोणती साडी कोणत्या नंदेने कोणत्या टोमणावरून दिले हे पण आठवतं. एका साडीचे फक्त 50 पिशव्या होतात. 50 पिशव्या आयुष्य होतं. माय मदर हॅड टॉट मी. माझे वडील रेल्वेमध्ये होते, ते रेल्वे युनिफॉर्मच्या त्या पिशव्या कापडात पॅन्टच्या पिशव्या व्हायच्या. आजही माझ्याकडे एक त्यांच्या वडिलांची ती पांढरी पिशवी आहे आणि बाजारात तीच पिशवी घेऊन जातो. कधी कधी बाहेर धुवत नाही म्हणून ती धुवून देते, पण तेवढंच भांडण होतं, बाकी काही नाही. पण आम्ही बाहेरून प्लास्टिकची पिशवी आमच्या घरामध्ये घेऊ. दॅट्स व्हॉट यू आर सपोज टू डू. ह्या प्लास्टिकचं काय करायचं, विल टेक केअर. ॲट दिस अप्रॉप्रिएट एज यू विल नो. इफ यू वॉन्ट आय कॅन गिव्ह यू अनदर लेक्चर ऑन हाऊ प्लास्टिक इज रिसायकल्ड. It's not a problem for me. But today is not that day to teach you recycling of plastic. मग त्याला मला तुला पॉलिएथिलीन म्हणजे काय, मग त्याच्यातलं रिसायकलेबल पॉलिएथिलीन कोणतं, ते मॉलिक्युल्स कसे रिसायकल करायचे, मग ते त्यांचे बॉन्ड्स कसे असतात, ते कुठे ब्रेक करावे लागतात. आय कॅन गिव्ह यू ऑल दोज डिटेल लेक्चर. बट crux of the matter is that this plastic can be recycled. जाड जे प्लॅस्टिक असतं ते आपण रिसायकल करू. तुम्हाला एवढं सांगतो की तुम्ही जर तुमची बाटली, म्हणजे आता तुम्ही सगळे एवढं लहान आहात, दुसऱ्या बाटल्या वापरत नसाची अपेक्षा, तर ती बाटली तुम्ही वाढवून जर तुम्ही तुमच्या कबड्डीवाल्याला दिली, त्याला त्याचे पैसे जास्त. अर्धी बाटली पाणी ठेवलं तर पाण्याचंही नुकसान होतं आणि त्याला त्याचे पैसे मिळत नाहीत, हे पण महत्त्वाचं. मग ती डम्पिंग यार्डवर जाते बिकॉज इट इज कन्सिडर्ड ॲज वेस्ट. आणि मग ती प्लॅस्टिकची बाटली डम्पिंगवर पडून राहते. आतलं 100 ml पाणी त्या बाटलीत तसंच राहतं आणि माझ्या अक्षय पाटकासारखं ते 100 ml पाणी मग सर्कलमध्ये येत नाही, मग जलचक्र बिघडतं.
Why global warming is happening? Because we are disturbing this water cycle, we are disturbing oxygen cycle, we are disturbing carbon dioxide cycle. The 3 cycle आपण disturb करतोय, that's why global warming is happening. Okay? Is it clear? हाँ, तुझा प्रश्न होता. सर माय नेम इज मोहित राव, आई एम फ्रॉम 9th क्लास। मेरा आपसे ये प्रश्न है कि जैसे धरती पे बहुत सारे प्लांट्स हैं जो धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं, उस वो नष्ट ना हो इसमें हम अपना क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं? ये समझा नहीं बहुत सर। कुछ प्लांट्स है जो अर्थ पे धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा, मतलब जो एक्सटिंक्ट प्लांट्स है, जो खत्म होने वाले, नामशीन होने वाले प्लांट, हाँ, उसके लिए बहुत सारे काम आप कर सकते हो। पहले आइडेंटिफाई करो कौन सा प्लांट खत्म हो रहा है, ओके, एंड देन यू कैन डेवलप द जीन बैंक, यू कैन डेवलप द नॉलेज, व्हेन यू ग्रो you will be able to do a lot for those extinct plants. Okay, I try to develop nursery for that, try to multiply it. If the plant is economically useful, you can do that certainly. Okay, good question. Any other questions? Yeah. Good morning, sir. So my name is Akshara Amish Khamble. So my question is, we know that plastic is harmful for environment. So मेरा कहना ये है कि कुछ इको फ्रेंडली प्लास्टिक भी होते हैं, तो ये हमें डिफरेंस कैसे पता चलेगा कि प्लास्टिक कौन सा हार्मफुल है, कौन सा इको फ्रेंडली? तुम्हारी आइडिया बहुत अच्छी है, मुझे ऐसा नहीं। सारी चीज तो आपका सवाल बहुत अच्छा है, एंड आई वांट रिसर्चर्स, यंग रिसर्चर्स लाइक यू ऑब्जर्व नेचर। नेचर में आपको 2 मॉलिक्यूल ऐसे मिलेंगे, एक है लिग्निन और एक है हेमिसेल्यूलोज। These are called long-lasting biological molecules. So try to use those molecules to develop this eco-friendliness. What we are using is ethylene. Once it becomes a polyethylene, it's very difficult to degrade. But lignin also is difficult to biodegrade. The nature has its own way through the microorganisms to degrade it. So if you develop a bioplastic using the cellulose, hemicellulose, there are many products like fibers. Okay, they are many, but they are not there. They are few change. Good morning, sir. My name is Apeksha Kokre from MSc Microbiology from Kamala Nehru College. Sir, मेरा जो डिसर्टेशन टॉपिक है वो है प्रोडक्शन ऑफ बायोप्लास्टिक एंड इट्स बायोडिग्रेडेशन। तो सर मैंने प्लास्टिक प्रिपेयर भी किया है एंड उसको एनवायरमेंटल डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन में उसको डिग्रेड भी कर दिया। तो सर एक कहना ये था कि इनिशिएट हम आज से यहीं से अलग करें, जैसे कि आज हमें रिफ्रेशमेंट में बनाना दिए गए, उसके सर बहुत सारे पील्स जमा हो गए, तो उसको फेंकने से अच्छा सर उसका यूज करें, उसके पील से भी प्लास्टिक बन सकता है। तो सर यहाँ से अगर हम इनिशिएट करेंगे तो बेटर रहेगा, मतलब उतनी सर अगर रिसर्च लैब वगैरह है वहाँ पे ये प्रोवाइड किया गया तो बेटर रहेगा सर। I have no problem with that. बहुत अच्छा सवाल है. What I will suggest is अगर there are किती मुलं आहेत, 250 मुलं आहेत तरी 200 मुलं आहेत, 200 केळाची सालं जमा झाली तुमच्या. ते 200 केळाच्या सालींचं एक तर खत काढा, फक्त मिक्सरमध्ये टाकायचं आणि मी सांगतो त्या पद्धतीने ते खतात मिसळायचं, खत होतंय. नाही तर या म्हणतात तसं बायोप्लास्टिक त्याचं बनवायचं. फक्त बायोप्लास्टिक बनवायला तुम्हाला एक काहीतरी सिस्टीम लागेल, एखाद्या लॅब आपल्याला शोधावी लागेल आणि मग बायोप्लास्टिक बनवू शकतो. ते इतकं सोपं नाही इंडस्ट्रियल ॲप्लिकेशन, बट इफ समबडी वॉन्ट्स टू टेक इट फर्दर दॅट कॅन बी ए गुड ऑप्शन. आय नो दॅट इट हॅज गॉट गुड फायबर, सो इट कॅन बी कन्वर्टेड टू बायोप्लास्टिक. यू आर राईट. तर इथली सगळी प्रिसाइजली दॅट्स व्हॉट आय वॉज सेईंग चाफेकर सर, की आपल्या ह्याच्यामध्ये जितकं आपल्याला हँड्स ऑन त्यांना दाखवता येईल इट वुड बी नाईस. की मी तुम्हाला एक 24 तासाचं फक्त नक्की दाखवू शकतो. उद्या जर प्लॅन केलं तर आपण परवा दिवशी त्याच मुलांना परत तिथे किंवा त्याचे फोटो त्यांना पाठवू शकतो. वी विल डू दॅट. Sir, my name is Manas Punekar. I study in class 9th B in Sivi Adarsh Vidya Mandir. सर मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि गर्मी के सीज़न में जैसे सुबह मैं गार्डन जाता हूँ तो गर्मी के सीज़न में बहुत लोग नारियल पानी पीते हैं
कोकोनट वाटर ड्रिंक करते हैं तो वो कोकोनट वाटर पीने के बाद वो कहाँ पे भी फेंक देते हैं। तो वो कोकोनट वाटर का आउटर शेल है वो बहुत स्ट्रांग होता है, तो उसको रीयूज कैसे करें? ये सवाल बहुत डिफिकल्ट नहीं है। कोकोनट शेल और नारियल के छिलके लेके वहाँ इतनी इंडस्ट्रीज है कि आप कहीं भी फेंकते होगे, वो बात सही है, लेकिन उसका एक कलेक्शन मैकेनिज्म है। जैसे गोवा में रोज कम से कम 10,000 ऐसे कोकोनट, छोटे छोटे कोकोनट्स है, टेंडर कोकोनट, वो जमा होते हैं। तो उनको इकट्ठा किया जाता है, वो 6 रुपये देके वो आदमी खरीदता है और वो लेके उसका कोकोपीट बनाता है। कोकोपीट मतलब क्या होता है मालूम है आपको? वो उसका फाइबर निकाल के उसको फर्मेंट करते हैं 6 महीने के लिए। तो केरला में बहुत बड़ी इंडस्ट्री कोकोपीट बनाने की, और ये नर्सरी में आजकल ये सारे आपके पॉली हाउसेस आ रहे हैं। पॉली हाउसेस में सॉइललेस कल्चर आता है। वो मैं अनदर 10 मिनट्स आई एम गोइंग टू डिस्कस सॉइललेस कल्चर, और आप घर में कैसे कर सकते हो। कारण तुम्हाला जोपर्यंत तुम्ही किसान प्रवृत्ती तुमच्यात डेव्हलप करत नाही ना, टुडे माय जॉब इज टू क्रिएट दी टेंडन्सी ऑफ फार्मिंग, टेंडन्सी ऑफ टीचिंग अँड टेंडन्सी ऑफ रिसर्चिंग इन युअर माइंड. आमचे ते मंगेश पाडगावकरांनी एक छान कविता लिहिली होती बरं का. ते फिरत्या चाकाला देशी मातीला आकार, विठ्ठला तू वेडा कुंभार. आपके सामने कुछ वॉलंटियर्स खड़े हैं, आपके सामने कुछ वॉलंटियर्स खड़े हैं, उनके हाथ में मैंने पेपर दिया हुआ है. अभी वो मैं कुछ सूचना देने वाला हूँ और वो सूचना का आपको अनुकरण करना है. जो मैं बोलूँगा वो काम करना है, सवाल पूछने नहीं है, सवाल पूछना नहीं है. ओके, आपल्याला उलटं उत्तर उलटं प्रश्न विचारायची सवय असते. असं का करू असं विचारायचं नाही. सो अभी मैं इनसे सवाल, इनसे कुछ सूचना दूंगा, तो सूचना का पालन करना है और आंखें बंद करनी है. आंखें बंद इसलिए करनी है, कोई आपको मारने वाला नहीं है, कुछ नहीं, आप चिंता मत करो. आंखें बंद क्यों करने का? क्योंकि अगर आंखें बंद नहीं की और मैंने कुछ बोला तो पहला हमारा ध्यान कैसा होता है, ये क्या कर रहा है ना, इधर ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, मतलब जिसे कॉपी पेस्ट बोलते हैं. हमारी ह्यूमन टेंडन्सी है, इसमें कोई गलती नहीं है किसी की. पण पहिल्यांदा आपल्याला आपण बघतोय तो काय करतोय समोरचा, वो एक दूसरे की तरफ देखना नहीं, इसलिए आंखें बंद करना. ठीक है, आंखें बंद. पेपर फोल्ड करो, फिर से फोल्ड करो, आंखें बंद, फिर से फोल्ड करो, फाड़ो, और जो कुछ हुआ है वो मेरे हाथ में दे दो. जाके बैठो, आंखें खोलो, वो प्रोडक्ट आपका हाथ में ही रखो. तू ज्यांनी दिलं माझ्याकडे ते जा. तुझं तू काय केलं बघू, तू काय केलं बघू. एक तू इथे धर, तू इथे धर, इथे धर. ये इकडं तिथे तिथे दे माझ्याकडे. अभी मैं एक मंत्र बोलता हूँ. आलिया मंत्र बोलिया मंत्र जादू की गई छू. अभी किसने क्या किया मुझे नहीं पता, तो गब्बर सिंह बोलते हैं ना, इसमें कितनी गोली है मुझे पता, कुछ नहीं पता. तो मला माहिती नाही आहे कुठल्या मुलांनी काय केलं. तुला माहिती आहे का? तू माझा माणूस आहेस का? म्हणजे तुला जादूगार लोक ते सांगतात आपला माणूस ठेवतात, माझी तुझी ओळख नाही. आता तू काय कर, एक एक उचल आणि प्रत्येकाने काय काय पराक्रम केलाय मी सांगितलेले आहेत ते बघायचं. किती तुकडे केले, कसे तुकडे केले, पटपट बघ. हे किती तुकडे झाले? ते 3 तुकडे झाले. हे किती झाले?
त्याची साईज बघ. हां आणि साईजेस वेगवेगळे आहेत. खूप लहान तुकडे झाले, तुला मोजता पडेल. हे बघ, साधारणपणे वेगवेगळे तुकडे, साईज, वेगवेगळे नंबर्स, म्हणजे एकाच प्रकारची सूचना दिली होती, एकाच प्रकारचा कागद हातात दिला होता, एकाच साईजचा, त्यात काही फारसा फरक नव्हता, बरोबर. आणि तरीसुद्धा प्रत्येक मुलाची आकलन शक्ती ही वेगवेगळी असते. सो वेन टीचर्स आर टीचिंग, हाऊ मच ए चाइल्ड इज इम्बायबिंग वी डोंट नो, अँड दॅट इज द स्किल. हे आणि त्या मुलांना सुद्धा सर काय बोलतात हे आपल्याला आकलन झालं आहे का नाही याच्यासाठी अभ्यास महत्त्वाचा असतो. मुलांना अभ्यास करायचा म्हणजे काय करायचं. आम्हाला खूप छान सरांनी तुम्हाला लहानपण म्हणजे काही गोष्टी शिकवल्या होत्या की संध्याकाळी घरी गेल्यानंतर होमवर्क देत नव्हते आम्हाला, एकही होमवर्क दिलं नव्हतं बरं का. पण संध्याकाळी गेल्यानंतर आम्ही सरांनी आम्हाला सांगितलं होतं की 10 मिनिटं प्रत्येक विषयाला, म्हणजे विषय 4 होते महत्त्वाचे, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, सोशल स्टडीज आणि सायन्स आणि मॅथ्स, 6 विषय. ते ही टोल्ड अस टू स्पेंड 1.5 hour एव्हरी डे. आणि 1.5 hourमध्ये काय करायचं तर सरांनी जे काही शिकवलं होतं ते मनामध्ये रिवाईज करायचं आणि त्याचे छोटे छोटे नोट्स काढायचे. आणि इफ यू डू दॅट you will never have a problem in understanding the subject. कारण त्या दिवशी संध्याकाळी सगळं फ्रेश असताना तुम्हाला जे कळलं नाही ते तुम्ही दुसऱ्या दिवशी सरांना विचारू शकता. दिस इज द वे यू हॅव टू स्टडी. अभ्यास हा असा करायचा असतो की तुम्ही नोट्स काढा तुमच्या स्वतःच्या आणि एकदा त्या वहीची नोट्सची काढून बघा. इफ यू हॅव मोर ऑर लेस करेक्ट, तुम्हाला घोकमपट्टी करण्याची गरज पडणार. You don't have to cram the subject. The cramming of the subject is the most responsible factor in our society that education remains in the books. मगाशी मी मार्क्सवादी एज्युकेशन जे म्हणलं ते इज द रिझन बिकॉज इट ऑलवेज इज यूज फॉर मार्क्स बट इट इज नेवर इम्बाइब्ड. अंगामध्ये ते मुरलं पाहिजे शिक्षण आणि ते शिक्षण मोडण्यासाठी तुम्हाला हा अभ्यासाचा पॅटर्न तुमचा जो आहे तो तुमचा तुम्ही ठरवा. Whatever pattern you decide that this is the way I will do it, I have no problem. But basically you must have your pen and notebook. At least another 2 generations the pen and notebook will be there. Although we say that everything will be replaced by now WhatsApp and mobile and computer, still the system will have to continue to use paper and pencil for another 2 generations. So in this generation you have no option other than and second thing which you should imbibe in you is reading. मला एक प्रश्न तुम्हाला विचारायचा आहे, हात वर करून फक्त त्याचं उत्तर द्या की गेल्या सुट्टी लागल्यापासून किंवा गेल्या 1 महिन्यामध्ये, लेट अस से इन द मंथ ऑफ एप्रिल, आज एप्रिलच चालू आहे ना, इन द मंथ ऑफ एप्रिल एखादं कुठलं छान नवीन पुस्तक तुम्ही वाचलं का? सर मैंने जो आरएसएस के जो संस्थापक है, आरएसएस के जो पहले संस्थापक थे श्री केशव जी हेडगेवार, उनकी जो छोटी सी बुक मुझे मिली थी मैंने वो पढ़ी. यस सर, मैंने उसमें ये बुक में ये पढ़ा कर मैंने उस बुक में से ये समझा सर कि जो केशव जी हेडगेवार जो थे उन्होंने बचपन से ही ठान लिया था कि मुझे देश के लिए कुछ करना है. उन्हें जब बचपन में जब कुछ सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था तो वो सब्जेक्ट मतलब जो ब्रिटिश के जो लेसन्स जो रहते थे वो पढ़ते थे बच्चे उस समय में. और उनके मन में एक ऐसा था कि मेरे को ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को मुझे मतलब उनके रूल को ही नहीं मानना है, उनका रूल टोटली गलत है. एक बार की बात है, जब जो ब्रिटिश की जो रानी होती है विक्टोरिया, उनका जन्मदिन रहता है, तब जो हर स्कूल में, वो डीडी नगर विद्यालय में पढ़ते थे उस समय पे, तो हर स्कूल में मिठाइयाँ बांटी जा रही थी.
तो सारे बच्चे मिठाइयाँ लेते हैं, सब लोग मिठाई खा भी लेते हैं, और जो केशव जी हेड के बाहर रहते हैं वो मिठाई नहीं खाते, वो मिठाई वो फेंक देते हैं। उनका कहना ऐसा था कि तुम अपने देश की जो संपत्ति है तुम मतलब ब्रिटिश को क्यों दे रहे हो, तुम अपने देश का हित सोचो, तुम भारतवासी हो, तुम्हारा जन्म भारत में हुआ है, और तुम उनकी बर्थडे पे जश्न क्यों मना रहे हो, तुम्हें स्वदेश ही रहना है, अपने देश के लिए कुछ करना है। उनका मेन एम यही था, ये मैंने पढ़ा था। बहुत बढ़िया In month of March, which new book you read? In month of February and month of January. If हमारे जमाने में अगर ये सवाल आप पूछते थे किसी कोई, तो आपको विश्वास नहीं होगा। मैंने कहा मेरा स्कूल मंत्रालय दिवस होते माने, हमारे स्कूल में बच्चों हर क्लास में 50 विद्यार्थी थे। हर क्लास में एक हारमोनियम जैसे बॉक्स रखा जाता था, उसमें 50 किताबें थी, और हमारा स्कूल 50 हफ्ते चलता था। हर हफ्ते हर लड़के ने एक किताब पढ़नी चाहिए, ऐसा अलिखित नियम था, लिखा नहीं था, कोई पनिशमेंट नहीं, अलिखित नियम था। मुझे गर्व है बताने में आपको कि 5वीं से लेकर 11वीं तक मैंने 350 किताब पढ़ी थी। और आज जो मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ ना, वो उसी के वास्ते। The moment you start reading things, your brain becomes more active. You know that. Visualizing is good for some understanding, but reading has no option in your life. पढ़ने को आपको कोई ऑप्शन नहीं। अरे क्या क्या किताबें पढ़ी हमने। तो जूलियस वर्न करके एक राइटर था, उसने 1900 साल में 1900 he had written one novel called 20,000 Leagues Under the Sea. उस जमाने में ना तो फिजन मालूम था, ना फ्यूजन मालूम था, ना न्यूक्लियस मालूम था, ना एटम मालूम था। उस जमाने में उसने न्यूक्लियर एनर्जी की कल्पना करके एक मरीन सबमरीन बनाई थी, जिस सबमरीन में न्यूक्लियर पावर रिएक्टर लगाया गया। और उसका जो चालक था कैप्टन नीमो, he was disgusted with the world. He didn't want to mix with the world, so he was moving in that submarine from one ocean to the other. He was taking round some oceans in the entire world, and he had described some of the biodiversity. This Jules Verne has described some biodiversity, जो जैव विविधता होती है उसका उसने वर्णन किया है। 1900 साल जब कोई पता नहीं था कुछ समुद्र जीव का, उस जमाने में उसने जो उसमें कल्पनाएं की है, वो कल्पना आज जब हम सबमरीन से नीचे जाते हैं तब पता चलता है जूल्स वर्न को कैसे मालूम था ये सब, कैसी कल्पना की होगी उसने कि ऐसे बड़े बड़े मगरमच्छ होते हैं, बड़े बड़े टॉर्टोइजेस होते हैं, बड़े बड़े व्हेल्स होते हैं, बड़े बड़े शार्क्स होते हैं। कोई कुछ मालूम नहीं था उस जमाने में, फिर भी उसने उसका इतना अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया था और लिखा था 80% बायोडाइवर्सिटी तो समुद्र के नीचे थी। तो वो नॉवेल, लेकिन है वो आज कल्पना के हिसाब से बराबर आई हुई नॉवेल, आज वो सत्य स्थिति हो गई। ऐसी इमेजिनेशन होती है। टुडे देयर वाज वन, यस्टरडे आई रेड वन आर्टिकल। मेरे मम्मी ने मुझे कहा था बेटे सोने से पहले कुछ नई चीज सीखने के बाद ही सोने का, तब तक सोने का नहीं। तो जब ये मैंने कल पढ़ रहा था, यूडोवस्की नाम का एक आदमी है, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आजकल सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आप लोगों को बहुत धोखा है, मोबाइल से धोखा है, क्योंकि मोबाइल से आपकी मेमोरी अभी कम हो रही है, जीरो हो रही है। हर चीज मोबाइल में है, तो आप मोबाइल के पीछे मत दौड़िए। तो ये उसने कहा है एक दिन आएगा ये रोबो ही पूरा ह्यूमैनिटी खत्म कर देगा, विच इज नॉट वेरी फार फ्रॉम दिस। अगर हम एक रोबो बनाते हैं, ये रोबो है, और ये रोबो मैंने बनाया, और ये रोबो को मैंने इंस्ट्रक्शन दिया, प्रोग्राम किया कि बेटे ये रोबो यू हैव टू डिस्ट्रॉय द रीजन फॉर ग्लोबल वार्मिंग।
So he will calculate, and he will calculate that every one of you is responsible for global warming, and he will start killing all of you. So robo, artificial intelligence is going to kill all of you. This is no more a fiction. In Japan, there are a robo which killed 6 soldiers because of the programming. There was nobody's fault. He was programmed in such a manner that if this is found, you kill that person, and he started killing you. Eliminate the reason, not kill the person. Eliminate the reason. So if you just imagine, हम लोगों ने बोलो कि अगर ये मीथेन बढ़ रहा है, ये नाइट्रस ऑक्साइड बढ़ रहा है, व्हीकल से बढ़ रहा है, so find out who is responsible, who is the culprit, and eliminate the reason. You will have to eliminate human being. कोई नहीं बचेगा फिर. Because all of us are responsible for global warming. You know that आपके घर की प्रेशर कुकर की सीटी ये ग्लोबल वार्मिंग करती है, आपको पता है? कितनी सीटी बनाती हो, कितनी सीटी देती हो? आपने ही कुकर 2 सीटी, आप 3, कितना सुनती हो? आप कितना देती हो? क्या तो कितना सुनता है घर में? सुनता तो 2-3. मम्मी चिल्लाती रहती है, अरे तुम तो बंद करो, 4 सीटी हो गई, 5 सीटी हो गई. तो ना हर सीटी के साथ जो स्टीम बनी है वो स्टीम हवा में चली जाती है. वो ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल टेम्परेचर जो उससे बढ़ता है, इन 1 सीटी कैन डिजॉल्व 15 मेल्ट अबाउट 10 to 15 grams ऑफ आइस ऑन द हिमालय. अब भारत में 30 करोड़ घर है, तो 90 करोड़ सीटी बसती होगी. 90 करोड़ सीटी तो 15 ग्राम. ये रोज सुबह और शाम बर्फ पिघलती हिमालय में, टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ेगा? और क्यों नहीं ये विषय होगा? अभी जो निसर्गामध्ये जो चमत्कार चालू आहे की कुठे अचानक खूप पाऊस पडतो, कुठे ढगफुटी होती. दिस वॉज नॉट लाइक दिस 50 years ago. बिकॉज दी एनर्जी कंजम्पशन वॉज नॉट दैट मच. जितना आज एनर्जी कंजम्पशन हो रहा है उतना एनर्जी कंजम्पशन. करेक्ट प्रेशर कुकर की मैं आपको आज रेसिपी बताने वाला हूँ. जब आप कुकर में राइस दाल रखोगी तब वो कुकर के ढक्कन ऊपर रखो और सीटी मत रखो शुरू में. हवा उसमें से बाहर जाने दो, क्योंकि हम 5-7वीं कक्षा में पढ़ते हैं मटेरियल्स टू वेल ऑन स्टीम प्रेशर. पहले हवा निकल जाए. अगर हवा का प्रेशर बढ़ेगा तो कोई फायदा नहीं है उसका. तो हवा बाहर जाने दो. स्टीम से अगर कुकर भर गया तो स्टीम आना शुरू होगा. देन यू पुट द विसल. Then whistle will be about to go off after some time. Seal the gas and then hold it for 5 minutes. If it is too dull, if only it is rice, you will have to hold it only for a minute and then switch it off, and then you will find that you will save your fuel. You will not be a papi for global warming, and you will have vitamin. सहवाढीचे खायला सगळी ती व्हिटॅमिन जातं ते हवेमध्ये. न्यूट्रिशनल व्हॅल्यू जाते हवेमध्ये with that city. So you should not allow that city to be. When you do that, you have stopped. So your global warming happens through your waste. Your global warming happens through methods like this. आप हम बोलते हैं कि अभी हमारी ज़रूरत हो गई है, AC चाहिए, गाड़ी चाहिए. ठीक है, इस्तेमाल करो, लेकिन दिमाग से इस्तेमाल करो. 24 डिग्री 25-26 डिग्री अगर आप AC हो, 24-26 डिग्री आप AC रखोगे तो बस होता है. लेकिन 22 रख के कंबल लेके सोना मेरे हिसाब से गलती कर, मेरे हिसाब से बहुत बड़ी गलती कर. तो चाहिए ना AC चाहिए तो, लेकिन हिसाब से करो ना. एटलीस्ट यूज योर ब्रेन. 4 डिग्रीज इफ यू आर सेविंग, इट्स ए ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी. 1 यूनिट आपकी बचेगी, और 1 यूनिट बचेगी मतलब उतना ग्लोबल वार्मिंग कम हो गया. ऐसे बातें करते रहे तो बहुत सारी बातें हैं. देखिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद. आप लोगों ने बहुत साथ दिया. और आज के जो प्रश्नकर्ता है उसे डिटेल कर सकते, उनसे भी डिटेल कर. तो वी विल अनाउंस द विनर्स. हर्षवर्धन नागपुर, हर्षवर्धन है, इज देयर. ओके, तो आपको टाइम दिया जाता है. देवेंद्र चौहान also gets a prize. This Mohit Rao is also a good question. Okay.
And I would like to work on more on that and find out those plants which are becoming extinct. और मुझे ईमेल भेज दो sharadkale@gmail.com, तो मैं बताऊंगा कि कैसे उसको प्रिजर्व किया जा सकता है। आ जाओ बाहर आ जाओ। So I congratulate all 4 of you. आपको सर्टिफिकेट कल आप सर से कलेक्ट कीजिए। I will like to present the school. हम लोग गिफ्ट देते रहते हैं। ये आपके ग्रंथालय के लिए, स्कूल के ग्रंथालय के लिए हे मराठीमधनं आणि एक हिंदी कवितांचं पुस्तक मी बनवलंय, ती मला शाळेला प्रेझेंट करायची आहे। स्टुडंट्स, I will also like to announce that या वर्षी आम्ही 28 फरवरी को हमने बम्बई में विज्ञान एकांकिका स्पर्धा दी थी, तो जिसमें स्टूडेंट्स हैड पार्टिसिपेटेड, 16 schools had participated, and these 16 schools got out of that 3 got the prizes. Idea of Vigyan Ekankika is to understand the subject at depth. तो एक किताब मैंने वो विज्ञान एकांकिका की लिखी है। आपके सारे जो स्कूल यहाँ रिप्रेजेंट हो रहे हैं, सारे स्कूल को एक ये किताब आपको स्कूल को दी जाएगी, स्कूल के प्रिंसिपल को। So each school, if they are not present here, चाफेकर जी will make sure that जितक्या शाळेची मुलं इथे बसली आहेत, या शाळा प्रत्येक शाळेला हे पुस्तक त्यांना द्यायचं आहे। आणि we are going to conduct in this 2024 a state level competition for विज्ञान एकांकिका। उसमें विदर्भ का जो काम करना है वो चाफेकर जी हैज एग्रीड टू रिप्रेजेंट, है ना? हाँ, he had agreed to help us in organizing the विज्ञान एकांकिका इन विदर्भ जोन, और उसमें से जो 3 विज्ञान एकांकिका वो सिलेक्ट करेंगे, वो बम्बई आएगी। अगले 28 फरवरी 2024 को विज्ञान दिन होता है, और वहाँ वो उनका अंतिम प्रेजेंटेशन होगा। अगर उसमें प्राइज मिल जाता है तो आपको अच्छा लगेगा, नहीं मिलता है तो भी आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि एक स्टेट लेवल की कंपटीशन पे आप जा रहे हैं। तो ये कंपटीशन आज मैं डिक्लेयर करता हूँ, और चाफेकर जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा क्राउड मेरे सामने रखा, जिससे बातें करने से ये लगता है कि बच्चे डायनामिक स्टेट में गए, अभी सोच रहे हैं मन में। तो आप अच्छा सोचते रहो। आज शाम जाके एक, जैसे मैंने अभ्यास की रीति आपको बताई थी, एक नोट्स आप निकालो मेरे भाषण का, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप ईमेल मुझे कर दो, उसका मैं अलग से एक्नॉलेजमेंट दे दूंगा आपको, sharadkale@gmail.com। आई एम नॉट मेकिंग इट कंपल्सरी। जो अच्छा ऐसे लिखेगा वो ऐसे मैं चाफेकर से साहब के पास डिस्कस करूँगा, और आई विल गिव ए स्पेशल प्राइज फॉर दोज स्पेशल एसेज विच आई रिसीव बाय ईमेल इन नेक्स्ट 2-3 days। तो ये और एक कंपटीशन है, नॉट नेसेसरीली कंपल्सरी। जिसको चाहिए वो आज लिखिए कि मैं पर्यावरण के लिए क्या कर सकता हूँ, क्या मेरे पर्यावरण के बारे में क्या विचार है। इसमें मेरे भाषण का सारांश आना चाहिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके कुछ विचार होंगे, आपके कुछ कल्पनाएं होंगी, आपकी कुछ कविता होगी, तो आप जरूर उसमें लिखिए। जो भी फ्री हैंड आपको दिया गया है, किसी को अच्छा लगेगा कि मैं अच्छा चित्र निकालूं, तो चित्र भी आप निकाल के उसकी फोटोकॉपी मुझे भेज सकते हो। जो भी आपके मन में आएगा, आज शाम को आपको मेरे लिए, जैसे आपने सुबह 2 घंटे दिए हैं, शाम को 1 घंटा मेरे लिए देना है, और वो शाम का 1 घंटे के बाद जो भी आपका प्रोडक्ट आएगा वो प्रोडक्ट आप ईमेल से मेरे साथ शेयर करते हो या स्कूल के साथ शेयर करते हो। स्कूल विल देन कम्युनिकेट विद चाफेकर। इज इट क्लियर? So thank you very much for listening to me.
I will expect that the schools from Sharda College, this Adarsha school, students from this will read these books, will get back to me if any of their responses, and the school will continue to motivate them. Not only these books, there are plenty of other books. नार्डिकर साहब ने लिखी हुई है, कलाम साहब ने लिखी हुई है, स्टीफन हॉकिंस ने लिखी हुई है, बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी फिक्शंस हैं, जिसमें आप एक प्रण बना लीजिए कि हम हफ्ते में 15 दिन में एक किताब पढ़ेंगे, उसका सारांश निकालेंगे। उस जमाने में हमारे स्कूल में हर सैटरडे ऐसा एक सेमिनार हुआ करता था, मैंने पढ़ा हुआ किताब उसके ऊपर बातें करते थे। एक दिन ऐसा हुआ, रात को 9 बजे तक बातें चली, पेरेंट्स देखने को आ गए, वो भी पीछे बैठ गए कि बच्चे क्या कर रहे हैं। तो ऐसा माहौल हम बना सकते हैं, आज भी बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग ब्राइट है, सबके चेहरे पे मुझे एक अलग सी चमक दिखाई दे रही है। वो चमक हम हमारे देश के लिए कैसे इस्तेमाल करें, यही मेरा प्रयत्न रहता है। आपको कुछ मेरे से मदद चाहिए तो जिस दिन तक मैं अर्थ पे हूँ, sharadkale@gmail.com पे आप संपर्क करते रहिए, मैं जवाब देते रहूँगा। धन्यवाद।